Good evening, everyone. On behalf of Students Coordination Committee and the Task Force for Empowering Young CMS, I welcome all of you for the today's session, evening talk, How to Crack Examination with Flying Colors. First of all, I thanks to CMA Mihir Vyas, Vice Chairman, and the Chairman, the Students Coordination Committee, and Task Force for Empowering Young CMS, the Institute of Cost Accountants of India, Western India Regional Council, to organize this session for the student. Our today's esteemed panelist is CMA Om Potalwad, CMA Pratham Mehta, CMA Drashti Parekh, CMA Abhishek Jangir, and CMA Harish Jangir. I welcome all of you. And our today's moderator is CMA Suraj Lohoti sir and CMA Santosh Brahmankar sir. Welcome all of you. Now I request CMA Suraj Lohoti sir to kindly start the proceedings. Thank you. Good evening, friends. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, Good sir. evening, sir. Ma'am, can you start the presentation from your side? Yes, I will share, sir. One sec. Now visible, sir? Yes, madam. Yes. Okay, sir. Thank you. Hello, friends. So this is our first session of WRC Task Force for Empowering Young CMAs. So what this task force is all about, we'll see what this task force is all about, and then we'll continue with our session. Ma'am, take the next slide. This task force is is under the visionary leadership of our chairman, Sir Arindam Goswami, and he has guided his dedication to fostering professional excellence. The task force for empowering young CMS has been formed. So this is for us. अपने लोगों के लिए बना गया है to for the young professionals. अपने को जो भी दिक्कतें आती है what we are facing at the time of exams होने के बाद इसके लिए they have given us this प्लेटफॉर्म जहाँ पे अपन अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं. So this committee is chaired by Mihir Vyas sir, who brings a wealth of experience and a deep commitment to nurturing the next generation of cost accountants. So I request Mihir sir, please give your feedback on this, and then we'll move ahead. Thank you so much, Suraj sir and Santosh sir. Before we start, I acknowledge the presence of my panelists, CMA Om Potlawad, CMA Pratham Mehta, CMA Drashti Parekh, CMA Harish Jangir, CMA Abhishek Jangir, and my two good friends, CMA Suraj Lahoti and CMA Santosh Brahmankar. Also, I acknowledge the absence of CMA Arindam Goswami sir, Chairman, CMA Nanti Bhai sir, my Secretary, CMA Chaitanya Mohire, past Chairman and Treasurer. Suraj Bhai, Yes. we need to do this even before 15 days. But due to some tasks, we are not able to do, but nevertheless. Yes. मैं इन शॉर्ट 2-3 चीजें हाईलाइट करना चाहूँगा. लास्ट टर्म में इंस्टीट्यूट ने डेटा पब्लिश किया था. वो डेटा ये था कि आप एमसीक्यू जो होते हैं इसमें सीएमए के स्टूडेंट स्कोर नहीं कर पाते. It is very surprising that only 30% score student has achieved in this MCQ. उसकी वजह से क्या होता है, इंटर फाइनल का रिजल्ट बहुत कम आता है. इंस्टीट्यूट ऑल्सो वांट्स we will give more CMS to the India, to professional industries, to governments. बट क्या होता है, ये छोटे छोटे चीज की वजह से, प्लानिंग की वजह से ये नहीं हो पा रहा है. तो स्टूडेंट्स मैं यही कहना चाहूँगा, आप एमसीक्यू पे ध्यान दीजिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल व्हाट्सएप में ये डेटा डाला हुआ है, आप चेक करना. शायद डब्ल्यूआरसी ने भी ये पब्लिश किया था. पूजन का किया था हमने ये पब्लिश डेटा. Yes, sir.
तो एक बार देख लेना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे जो पैनलिस्ट है यंग सीए में, डायनामिक यंग सीए में रैंकर भी है जो, तो उनसे भी आप बात कर सकते, इंटरेक्शन कर पाओगे, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस। सेकंडली, पेपर कंप्लीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप प्लान ऐसे कीजिए कि आपका 90 से 100 मार्क का पेपर कंप्लीट हो ही जाए एनी हाउ। तो पेपर देने से पहले आपने प्लानिंग की होगा, प्रैक्टिस की होगी, तो एग्जामिनेशन में जाने से पहले एक बार वो देख लेना कि आप एनी हाउ 90 to 100 मार्क का पेपर कंप्लीट हो जाए। एनी हाउ मीन्स आप परफेक्ट ही लिखना है, ऐसा नहीं कि मैंने बोला तो 90 to 100 मार्क का लिख के कुछ भी लिख के आना है, बट सब्जेक्ट मैटर पे आपको लिखना ही पड़ेगा। और थर्ड चीज, जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, उसमें भी आप स्कोरिंग करना। उससे क्या होता है, कोई थियरी सब्जेक्ट में आपके कम मार्क आते हैं तो आप सेट ऑफ और रैंकिंग में भी आपको हेल्प होता है। तो स्टूडेंट्स प्लीज मेक श्योर ये 3 चीज ध्यान में रखना। और चौथी बात, एग्जाम में कभी पैनिक मत होना। आपके सब आरसीएम, आपके सब फ्रेंड आपके साथ ही है, कुछ भी प्लस माइनस होता है हम आपके साथ है। और एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन कनेक्ट हस, WRC ओपी से भी आप कनेक्ट कर पाओगे, अपने लोकल चैप्टर भी कनेक्ट कर पाओगे, आप हमारे जो भी पास स्टूडेंट्स है या जिसने सीए में कंप्लीट किया उससे भी कनेक्ट कर पाओगे। और हमारे WRC टास्क फोर्स एम्पावरिंग सीएमए से के साथ भी आप बात कर पाओगे एनी टाइम। सूरज भाई भी है, संतोष भाई भी है। Yes. Yes, sir. तो संतोष भाई, Yes, सूरज sir. भाई, Yes. Yes, ये sir. आगे का सेशन आपको ही लेना है। स्टूडेंट मैं सेशन में अवेलेबल हूँ पूरा टाइम, आप कुछ भी No पूछना हो। problem, sir. No problem. तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर Yes, sir. गिविंग योर टाइम फॉर दिस इवेंट। थैंक यू सो मच। एंड Thank you, sir. यंग सीएमए फ्रेंड को थैंक यू बोलना चाहूंगा, उन्होंने टाइम निकाल के आज आए हैं सैटरडे को, तो थैंक यू माय फ्रेंड। Thank you so much, sir. Madam, please take the next slide. अभी ये जो WRC टास्क फोर्स है, what is the aim? The aim is for empowering young CMAs and students to excel in their professional journey by bridging the gap between academic knowledge and industrial expectation. अभी अपने को अपने पैनलिस्ट भी इसके ऊपर गाइड करेंगे. Now they are in the job. What is going on in the job? What is the academic things which we are learning और उसको use कैसे करना है. So this is the main aim of this task force going ahead. So what is the motive for this thing? Guidance and mentorship. अपन इसमें क्या करेंगे? Every time we will call some panelists, new panelists with specific topic जो अपने को guide करेंगे. Under that mentorship we'll move forward to develop our skills. उसके लिए webinars, workshop we will conduct that things. What are the career opportunities, campus placement, ये सब अपन आगे we'll move ahead. Exam support जो अभी अपन फर्स्ट सेशन कर रहे हैं ऑन दिस एग्जाम सपोर्ट, जो पैनिक होता है एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स, व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी नॉट टू डू एट दिस टाइम, ये सब अपन आगे ले रहे हैं. और एक चीज एक इसके लिए तो टू ग्रो आवर सेल्फ, आवर टैलेंट्स, इनोवेशन एंड स्किल्स मूविंग अहेड. सो व्हाट इज द current means what we require right now. Now we are going for the exams. So ये एग्जाम्स के टाइम पे व्हाट वी शुड बी रेडी फॉर, जो अपने आज के पैनलिस्ट है वो ये सब लेने वाले हैं. आफ्टर एग्जाम्स, यस आई हैव 2 to 3 months. इस टाइम पे मैं क्या करूँ? तो नेक्स्ट सेक्शन वी विल टॉक अबाउट इन 2-3 months में कौन से स्किल्स डेवलप करूँ और व्हाट टू डू नेक्स्ट. उसके बाद आई हैव कंप्लीटेड माय फाउंडेशन. अभी मैं एग्जाम दे रहा हूँ. आई हैव कंप्लीटेड माय फाउंडेशंस, इंटरमीडिएट या फाइनल. तो इसके बाद क्या? Should I go for आर्टिकलशिप करने का या मैनेजमेंट ट्रेनिंग करने का? These are the questions जो अपने को फेस होते हैं. So we'll have different sessions. Panelists will call them for these things. Next, moving ahead, और क्या क्या करना है अपने को इसके साथ. Expectation of industries क्या है? We'll call the panelists from the industries, top managers. What they require from the student. इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अपने जो टॉपिक्स है व्हाट वी आर गिविंग राइट नाउ इन द एग्जाम्स, उसमें डिटेल में वी विल गो इनसाइड वन और द अदर टॉपिक. और एक क्वेश्चन जो अपने को हमेशा रहता है, अर्न एंड लर्न, इज इट पॉसिबल? आई एम इन जॉब बट मैं इसके साथ में डेडिकेट कर सकता हूँ क्या फॉर द टाइम टू स्टडी ऑल्सो. किसी के पास स्टार्टअप के आइडियाज है,
how to move ahead with the financial planning, system development, and furthermore topics work-life balance और ये सब. So we are having a calendar of the topics. Exams के बाद भी be in touch, be in this thing. So moving ahead, आज का जो है अपना topic is how to crack examination with flying colors. Yes, the most important topic जिसके लिए आप सब eagerly wait कर रहे हैं. Instead of taking much of your time, मैं panelist का introduction करता हूँ. I request the panelists to introduce yourself in detail. So I start first with CMA Om Potwal. Om Potwal is Assistant Finance and Accounts Officer in Company Engineering India Limited. Over to you, Om. Please introduce yourself in Yes, sir. 30 seconds. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. So, good evening, friends. Myself, CMA Om Naresh Potalwad. I have recently cleared my CMA exams in the very first attempt, and I have also secured an All India rank 17th in the final exam. And I have selected in Engineers India Limited as a Assistant Finance and Accounts Officer through campus placement. So I am very excited to join this session because this is my first interactive session with the students. Earlier, I used to join as a student, but now I have joined as a panelist. So it will be fun to interact with you all. Over to you, sir. Yes, the next person with us is CMA Pratham Mehta, Assistant Manager Finance at Vodafone Idea. Please introduce yourself. Hello everyone. Hello everyone. Good evening, sirs, and who are presented over here. My name is CMA Pratham Mehta. I have recently passed out in June attempt 24 by securing Air 15 rank, and I have cleared all my groups in first attempt only. And I was also selected in Ahmedabad campus in Vodafone Idea. And this was my also first session to interact with you all guys. And over to you, sir. I would like to welcome Darshiti Parikh. Please Yeah, introduce. thank you, sir. Thank you, sir. Good evening to everyone present here. I'm truly delightful to have this opportunity to address you all today. It is an honor to stand before you, such an enthusiastic audience, especially those who are preparing for CMA exams. I'm currently working in Kedila Pharmaceutical. I got selected from Ahmedabad campus placement. Thank you, sir. Over to you, sir. I would like to welcome Abhishek. Please introduce yourself. Thank you, sir. Good evening, everyone. My name is Abhishek Richpal Jangir. I'm a June qualified. I qualified my CMA examination in June 2024, and I cleared my CMA examination in very first attempt. And after that, I joined Glenmark Healthcare Limited, which is a new subsidiary of Glenmark Pharmaceutical Limited, as an executive. And I am the head of department of there, who is managing all the accounting activities in a Glenmark. Over to you, sir. Thank you. I would like to welcome Harish. Please introduce yourself. Yes, sir. Yes, sir. Hello, everyone. My name is Harish Jangir, and I have recently qualified my CMA examination in June 2024 attempt. And I would like to thank all the Mihir sir and all the team, Suraj Lahoti sir and other sirs, ma'am, for organizing this amazing session. बिकॉज मैं सोच ही रहा था स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्यूरीज आ रहे हैं, ये एक प्लेटफॉर्म मिल गया तो सभी शॉर्ट आउट हो जाएंगे और हमें भी मौका मिल जाएगा कि हम अपने व्यूज शेयर कर सकें. उसके लिए थैंक यू. एंड नाउ ओवर टू यू सूरज सर. Yes, I will also like to welcome Rohan Sharma sir. Sir, are you there? Yes, I am here. Am I audible? Yes, Ron, yes. you are audible. Okay, thank you, sir, You are audible, sir. for inviting me. Yes, please introduce Welcome, Ron. yourself. Welcome. You can So, start it. welcome every students and thanks for WRC. Definitely, like WRC doing a great job for all the qualified and like for recently those students who are going for the exam, they will definitely get benefited. Last moment tips always work for everyone in their exam. So, and here like two students I know them personally, Pratham and Abhishek. So those I'm 100% sure those students will give the proper guidance to all the students. Yes. Thank you, sir. So welcome you all panelists on this board. We will start with some questions from our side and then we'll open the forum for the students to
call for their questions and we request all the panelists to please guide them in their exams right now. So we move further with the question and answer round for the panelists. So our first question is, Are you ready, guys? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, Always. my ABC first, का ही vibe आ गया sir. yes, my first question for the on behalf of the student, how do you manage your time during the preparation for exams? so Pratham sir, first you please guide us on this. How to how do you manage your time during preparation for exams? How First to of all, manage our my time? timetable. First of all, my timetable was I was not a early bird student. I was reading late night at the exam duration. My timetable, sir, was that I will read 2 till to 3 to 4 p.m. at night only and not at early. And I have also done 3 to 4 mock test paper during examination, before examination. And sir, rest of that I go through all the modules and past paper also. So I've done this preparation during the exam time. Next question to Drishti, CMA Drishti Parekh. What is your strategy for revision before the exams? What should be our strategy for the revision before exams? मैं ऐसा बोलना चाहूंगी कि आप जब प्रिपेयर कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप चार्ट्स बना रहे हो और समरी नोट्स बना रहे हो, बिकॉज वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन इट वोंट बी पॉसिबल टू रिवाइज एवरीथिंग. और डीटी है, फिर जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है उसके लिए सब पूरा बुक्स 1 by 1 पेज मॉड्यूल सब करना वो डिफिकल्ट नहीं है. तो मेक श्योर कि आप लोग चार्ट्स बनाइए और समरी नोट्स बनाए. वो इतनी प्रिसाइज होनी चाहिए कि आप वन डे बिफोर एग्जामिनेशन उसको प्रिपेयर कर पाए. सेकेंड थिंग इज कि आप जब भी प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसे प्रिपेयर करो, उसको ए बी सी कैटेगरी दे दो कि ए कैटेगरी वो है जो आपको आता है और वो इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के लिए, तो वो पहले रिवाइज करो. फिर बी सी कैटेगरीज में ऐसे टॉपिक्स रखो जो आपको नहीं आता और थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंट है. लीस्ट इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं होता है इस एग्जाम्स में, सीएम एग्जाम्स में स्पेसिफिकली, पर आप प्रीवियस पेपर्स जो है उसको गो थ्रू करिए, जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछते हैं उसको देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप एनालाइज करिए. थैंक यू सर. Thank you. Students, if you have questions, raise your hands and on your mic. We will go with your questions also. So my third question is to CMA Abhishek Jangid. What do you do if you don't know the answer to a question in the exam? And means during the exam, if you don't know the answer, so yeah, what you do for that question? Sir, thank you, sir. First of all, in that scenario, so basically मैं क्या करता हूँ अभी एग्जाम पीरियड में हमें 20 मिनट्स बिफोर हमें क्वेश्चन पेपर मिल जाती है. सो मैं प्रायोरिटाइज करता हूँ कि आउट ऑफ 7 क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन मुझे फर्स्टली इजीली आ रहा है, आई कैन अटेम्प्ट 100% क्वेश्चन विदाउट एनी इनकरेक्ट, कुछ गलत ना हो. तब प्रायोरिटाइज द क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. सो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं मोस्टली मेरा इजीली कवर अप हो जाते. सो माइट भी अगर एक आध दो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हो सो मुझे लास्ट में उनको अटेम्प्ट करता हूँ. सो फर्स्ट ये स्ट्रेटेजी में फॉलो करता हूँ. एंड द सेकंड थिंग जो एमसीक्यू पार्ट ऑफ रहता है, जैसे मेरे सर ने भी बोला कि इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट. हुकुम का इक्का टाइप है कि वो आपको स्कोर करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है. बट वो पार्ट कभी भी आप इनिशियल जो 20 मिनट्स होते हैं उनमें उनके तरफ ना देखे तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो मैंडेटरी पार्ट है, हम उनको अटेम्प्ट करने ही वाले. सो बेसिकली फर्स्ट 20 मिनट्स में आप क्वेश्चन को प्रायोरिटाइज कीजिए, दैट विल बी हेल्प यू टू अवॉइड द मिस्टेक्स. और एक आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि 30 एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट कर रहे हो और 2 to 3 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिकल के अटेम्प्ट करते हो. सो मोर देन 60% आपका पेपर कवर हो जाता है. सो दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, तो आपको आगे हेल्प करेगी वो चीज. थैंक यू सर. Thank you. I think Neha, you have got your answer. Or if you have any question, Neha Yadav, you can on your mic and ask again. Neha, are you there? Yes, sir. Yes, you can ask your question. So Neha has asked how to prepare for MCQ questions in exams.
I think the panelists have given you your answer. I would like to add something. Yes. एमसीक्यू के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है, शायद सजेस्ट जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल है आप उनको ही प्रेफर कीजिए. सो मोस्टली जो आपके क्वेश्चन है, आई कैन से 80 to 80% क्वेश्चन आपके मॉड्यूल से कवर हो जाते हैं. सो आप मॉड्यूल ही रेफर कीजिए. सेकंड आउटसोर्स नहीं बेनिफिशियल होगा जितना आपका इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है. I want to So add inter to something. Yes, please. ये दृष्टि. या जो इंस्टीट्यूट का बिट्स एमसीक्यू का आता है एंड मोमेंट एग्जाम का थोड़ा टाइम बाकी रहता है तब आता है, तो उसको भी गो थ्रू करिए. उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो मॉड्यूल एंड बिट्स क्वेश्चन ये दोनों करिए, और जो पास पेपर्स है उसके जो एमसीक्यूज है वो सारे कर दीजिए. Next question is to something. yes, सूरज भाई yes, बात में. yes, sorry. हमने भी ये लास्ट 2 टर्म से एमसीक्यू पब्लिश करना चालू किया है डब्ल्यूआरसी ने, और उसको स्टूडेंट ई बुलेटिन में भी हम एमसीक्यू पब्लिश कर रहे हैं. तो स्टूडेंट को रिक्वेस्ट है आप गो थ्रू कीजिए डब्ल्यूआरसी के एमसीक्यू और ई विद्यार्थी के एमसीक्यू. आप वो भी आपको हेल्प करेगा. थैंक यू सूरज भाई. Thank you, sir. Next question is to CMA Om sir. So my question is, How do you stay motivated during a long preparation phase? yes, motivated कैसे रहना है? Motivated. Self मैं motivated. रिजल्ट के दिन के बारे में सोचता हूँ. If I have to enjoy that day, I am ready to struggle. I am ready to give my 100% today. अगर आज मैंने मेहनत की, अगर आज मैं पढ़ा, अगर मैंने आज कुछ चीजें सेक्रीफाइस किया, तो ऑन द रिजल्ट डे आई विल बी मोर हैप्पी. मतलब ये वर्थ इट हो जाएगा. तो अगर मैं सबसे यही कहूंगा कि इफ यू वांट टू मेक योर रिजल्ट डे अ मेमोरेबल डे, so start studying now. It's not too late but not too early. So start. Over to you, sir. Yes, thank you. Next question to CMA Harish. So one of the student has asked the question, during the preparation did you face any breakdowns and how did you overall balance it with practical training and completing the syllabus? So Haider Malvi has asked this question. Over to you, Harish. सर. हाँ सर, ब्रेकडाउन तो बहुत होते हैं. मतलब एक बार तो ऐसा लगता है जैसे एसएफएम की सब्जेक्ट उठा के कभी पढ़िएगा सर, शुरुआत से एंड तक आते हैं पता ही नहीं चलता शुरुआत में क्या पढ़ा है. वो तो भूल ही जाते हैं. ऐसा तो बहुत सारे बच्चों को सुनने में मिला है कि ये होता है. पर मेरा ये मानना है कि अगर आप एक प्लान्ड वे में अगर आप चलते रहें, अपनी प्रिपरेशन को एक ठीक डायरेक्शन दें, तब आपको शायद ये इश्यूज आएंगे नहीं. अगर आपका ब्रेकडाउन हुआ भी तो आपके पास में एक बैकअप प्लान पहले से तैयार रहना चाहिए. यू आर बी लाइक कि हाँ भाई मैंने अभी मॉक टेस्ट दिया, मेरे कम मार्क्स आ गए, तो ये नहीं करना कि कम आ गए उस पर डिप्रेस हो गए. नहीं भाई, क्यों कम आए हैं, कौन से ऐसे टॉपिक से जो मुझसे अच्छे से कवर नहीं हुए हैं, उस पर फोकस कीजिए. मतलब डोंट फोकस ऑन ओनली ऑन योर वीकनेस, है ना. उस वीकनेस को स्ट्रेंथ कैसे बना सकते हैं उस पर थोड़ा फोकस कीजिए. वो ज्यादा जरूरी है रेदर देन कि अपने स्ट्रेंथ को लेके चलोगे तो फिर ऐसा तो नहीं होगा ना. क्योंकि अपने को भी एक ऐसे आईना देखना जरूरी है, इसीलिए मॉक टेस्ट होते हैं. किसी को और कुछ ऐड करना है? Other One panelists? Yes. One second, sir. Our treasurer, sir, CMA Chaitanya Morir, sir, is there. I welcome, sir. And I request, sir, to kindly address the students, please. Welcome, Chaitanya, sir. I request everyone to continue. Please continue. Sorry, I was a little bit late, but please continue. वेलकम चैतन्य भाई, वेलकम. आप 2 मिनट कुछ कह पाए, स्टूडेंट को कोई एडवाइस दे पाए? नहीं, बाद में, अभी डिस्टर्ब नहीं करता हूँ. लेट अस कंटिन्यू व्हाटएवर इज गोइंग ऑन. प्लीज कंटिन्यू. ठीक है. Yes. Thank you, sir. Welcome to you. My next question is to CMA Rohan Sharma. What do you balance stress and prepare during the exam? So how do you balance your stress? The same question it was asked once again. How do you balance your stress at the time of exams? Rohan, please guide on this. During the exam, so या एक्चुअली लाइक देखो, एग्जाम का प्रेशर हर किसी को रहता है. ऐसा नहीं कि किसी को नहीं रहता है. चाहे वो रैंक होल्डर भी हो, उनको भी एग्जाम के टाइम में उतना ही स्ट्रेस रहा होगा जितना नॉन रैंक होल्डर या जिसके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे हैं. तो बेसिकली आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को सोचना है लाइक ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूफ करने का. हमेशा आप यही सोचो आपको एक चांस मिल रहा है, और ये चांस सिर्फ पूरे साल में 2 बार ही आता है.
तो आपको उस हिसाब से सोचना है कि इस अपॉर्चुनिटी में अपने आप को प्रूव करना है और उन लोग को दिखाना है कि आपको जिस मतलब जो लोग आपके बारे में कुछ बोल रहे थे, क्योंकि होता है ऐसा काफी टाइम में, तो आपको स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अपने लिए मोटिवेशन खोजना है पहला चीज। और सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके पेरेंट्स होते हैं जो आपके लिए काफी सेक्रीफाइस करते हैं ड्यूरिंग दी आपकी स्टडी। तो कहीं ना कहीं आप उनको सोचो, आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। दूसरा, ड्यूरिंग द एग्जाम मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा ज़्यादा फ्रेंड्स टॉक ना करें, बिकॉज होता है कि हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, फिर वो टॉपिक आउट ऑफ पॉइंट चला जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं। फिर क्या हुआ कि आपने अपनी स्टडी प्लानिंग किसी और तरीके से की होगी, आपने कोई टॉपिक छोड़ा होगा, आपका फ्रेंड बोल देगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला है। अब आप उस स्ट्रेस में चले गए कि यार वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं। आपको एग्जाम में ऑप्शंस हैं, आपके पास 7 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को चूज करना है। तो आपको प्लान अकॉर्डिंगली करना है कि 5 क्वेश्चन आपके कौन से होने वाले। अगर मैं अपने टाइम में बात करूँ तो मैं फाइनल में CFR में कॉन्सोलिडेशन का चैप्टर मैं पूरा छोड़ के गया था, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और फिर भी मेरे 56 आए थे अकाउंट्स में। रीजन क्या था, मेरे बाकी पार्ट स्ट्रांग थे, तो मुझे टेंशन ही नहीं था। तो आपको इस तरीके से अपने आप को प्लान करना है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Good. Thank you. Thank you. Good suggestion from Rohan sir. We move forward with our next question. One of the student has asked kindly advice for working professionals. So I request CMA Pratham Mehta for the working professional how to crack the exams. Please guide on this. Okay, sir. Working professional मतलब सर articleship? More than Articleship means articleship, I think. The question is asked by one of the student. Please, is this articleship or are you in a job, full-time job? I think for full-time job. Shiju has asked this question. अरे प्रथम, यू कैन आस्क एज आर्टिकलशिप आल्सो, सब फुल टाइम ही होता है। वो आर्टिकल अभी okay. सब जगह 8 घंटे ही काम करते हैं आप लोग। दोनों चीजों का बता दो। ओके सर, इन आर्टिकलशिप सर ऐसा होता है कि सर 8-10 से 6 तक आर्टिकलशिप होती है, और सुबह ट्यूशन होता है, 8 से 10 का ट्यूशन होता है, और शाम को 7 से 9 का ट्यूशन होता है। तो फिर तुम्हारा सर पढ़ने का, रिवीजन करने का, कैसा कुछ करने का मन ही नहीं होता, सेल्फ स्टडी। तो भी सर मैं करता था पर्सनली, मैं और मेरे ग्रुप्स मिलके करते थे रात को स्टडी 10 से 2। और क्योंकि स्ट्रेस होता है एग्जाम का, और स्ट्रेस भी होता है एग्जाम का, और फिर हमको स्कोर भी करना है अच्छे मार्क्स, तो मैं करता था, स्टडी करता था। और उसको मैनेज करने का ऐसा है कि सर तुमको हर रोज सर पढ़ना पड़ेगा, और इसने आपने पढ़ना छोड़ दिया, सेल्फ रिवीजन करना छोड़ दिया, तो सर आपका सब बहुत कंबाइन हो जाएगा लास्ट में मंथ में। तो फिर आपका सर बहुत स्ट्रेस बढ़ जाएगा और आपको अटेम्प्ट स्किप हो जाएगा। फिर तो आप अटेम्प्ट स्किप करके वन काइंड ऑफ फेलियर ही है वो आपके लिए। तो अटेम्प्ट को भी स्किप नहीं करना चाहिए, और यू हैव टू स्टडी वेल एवरी डे। एंड संडे भी आपको, और मैरिज आप अटेंड नहीं कर सकते सच बोलूं तो सर, मैरिज और वेकेशन आपको सर स्किप करना पड़ेगा। तो आई थिंक सो यू हैव टू स्टडी डेली, और रिवीजन डेली करना पड़ेगा आपको सर। यस, मैं इसमें ऐड करता हूँ, प्रायोरिटाइज योर थिंग्स। वर्क के साथ अपने स्टडीज को भी प्रायोरिटाइज करना है। जिस टॉपिक में अपना वीक है, तो डेली पे क्या स्टडीज करना है, हाउ यू हैव टू गो, वीकली क्या प्लान आउट करना है। सो प्रायोरिटाइज, मेक अ प्लान फॉर योरसेल्फ एंड देन यू कैन मूव अहेड विद द थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन टू दृष्टि अगेन, दृष्टि पारिक। अभी ये जो क्वेश्चन है अगला, तो ये मीर सर ने भी ऑलरेडी हाईलाइट किया है, और मेरे हिसाब से पासिंग में इसका सबसे ज्यादा वेटेज है, और वो है MCQ। तो दृष्टि प्लीज इस पे थोड़ा सा ब्रीफ में बताओ। हाँ, MCQ एक्चुअली कैसी बात है कि थोड़ा टाइम दोगे और उसमें से मार्क्स ज्यादा कवर हो जाएगा। वो पैरेटो एनालिसिस आप सबने शायद पढ़ा होगा कि 80% का जो मिलता है वो 20% के एफर्ट से मिलता है। तो MCQ वैसा वाला है कि MCQ आप अगर थरली सब रीड करोगे और अगर फॉर्मूलाज वगैरह सब आपने ठीक से किया हुआ है तो MCQ क्रैक करना इजी हो जाता है। और MCQ के लिए तो ऐसा है कि कुछ प्रिपरेशन मटेरियल नहीं है, क्योंकि MCQ हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट तरीके से ही पूछते हैं। तो वही सजेशन है कि एक बार MCQ मॉड्यूल, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मॉड्यूल, और इंस्टीट्यूट ने जो नया वाला मॉड्यूल बनाया हुआ है, आई मीन 2022 सिलेबस का, वो बहुत अच्छे से बनाया है। तो मेक श्योर यू जस्ट गो थ्रू थरली मॉड्यूल कर लेना। और वो है कि बाकी सारे मटेरियल्स पे बाद में आपको करना है तो वो ऑप्शनल है। अगर
पहले मॉड्यूल खत्म हो गया तो उसके बाद आप कोई भी और मटेरियल पे शिफ्ट होइए, पर मेन फोकस है कि मॉड्यूल कंप्लीटली करिए। ये देख किधर रहा है? Yes, thank you, Drushti. So she has told students पहले अपना मॉड्यूल पूरा कंप्लीट करना है, then move ahead. Next question to CMA Abhishek. Student Rahul has asked how to score good marks in law. Yes, ये theoretical subject है, इसमें मैं अच्छे स्कोर कैसे लाऊं? Over to you, Abhishek. सर बेसिकली लॉ जो सब्जेक्ट है पर्सनली ईच एंड एवरी सब्जेक्ट है देयर ओन स्पेशलिटी रहती है, उनके स्टडी करने का एक टाइप रहता है। सो लॉ सब्जेक्ट है कि जो मैंने पर्सनली किया था, मैं एक बता सकता हूँ, अ मंथ बिफोर एग्जाम आई एम नॉट एबल टू आंसर सिंगल, मुझे कुछ प्रॉपरली याद भी नहीं, मैं सब कुछ भूल चुका था क्योंकि गैप हो गया था। लॉ सब्जेक्ट जिसके लिए आपको एक डेली रिवीजन लगती है। सेकंड थिंग, चार्ट बुक्स मिलते हैं मार्केट्स में, बहुत सारे जो फैकल्टीज है चार्ट बुक प्रोवाइड करते हैं। तो आई स्टडीड ऑन द थ्रू द चार्ट बुक्स, मैं चार्ट बुक्स पढ़ता था। आफ्टर द रीडिंग ऑल द चार्ट क्वेश्चंस जो अपने क्वेश्चनर रहते हैं, सो एक क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ के उसका आंसर्स लिखता था खुद से। तो लिखने के बाद उन जो अपना क्वेश्चनर में आंसर है वो करता था कि इसमें मुझे और कौन से पॉइंट इन एडिशन करने चाहिए, इसमें कौन सा कम हो सके, तो एड ऑन करता था। सो लॉ सब्जेक्ट के लिए आप जितनी प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, रीडिंग एक पार्ट हो गया, पर अनलेस एंड अनटिल आप उसमें राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप गुड स्कोर कभी भी नहीं कर सकते। एंड सेकंड थिंग एक ऐसी है जो मैंने चार्ट बुक का बताया, एग्जाम डे के डे, हेलो आई एम ऑडिबल? Yes, yes, yes. Go ahead. Go ahead. एग्जाम डे के दिन आप कभी भी आपका मॉड्यूल हो या जो सेकंड जो भी आप मटेरियल फॉलो कर रहे हो, आप कभी रीड नहीं कर सकते हो। तो दैट टाइम आपको ऐसा मटेरियल चाहिए जो शॉर्ट टाइम के आपका पूरा सिलेबस कवर कर सके। सो फॉर दैट रीजन आई कैन से आप चार्ट बुक रेफर करो। मैंने मेरे एग्जाम डे में सिर्फ चार्ट बुक पढ़ी और जो क्वेश्चन आंसर सेल्फ स्टडी किए, जो लिखा इतना इनफ रहा। और आई कैन से मुझे एग्जामिनेशन था, सो आई जस्ट फॉलो दैट मेथड आई एम टेलिंग टू यू। सो दिस इज सिंपलेस्ट मेथड। उसमें उसने he has asked one more question. Moderator का expectation क्या है? The checker of the paper in law paper, what he expect in the answers? What is the moderator's expectation in law paper? तो मॉडरेटर की एक्सपेक्टेशन जो भी क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन भी दो टाइप से रहते हैं बेसिकली। आपको मोस्टली लॉ में क्वेश्चन केस स्टडी टाइप रहते हैं, आपको एक पर्टिकुलर सिनारियो दे दिया जाता है, उसको आपको एनालाइज करना है कि वो किस लॉ से किस सेक्शन से रिलेटेड है। इफ यू नो द सेक्शन यू कैन इजीली कोट। और लॉ के आंसर लिखने का एक टाइप रहता है। सो फर्स्ट थिंग हैव टू द जो सेक्शन है पर्टिकुलर, जो लॉ का सेक्शन है, यू हैव टू कोट द फर्स्ट सेक्शन इन द फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड थिंग, आप उसका जो पर्टिकुलर सिनारियो उसमें क्या आप वो सिनारियो लिखिए। थर्ड में उसका कंक्लूजन। सो कंक्लूजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। दिस इज 3 पैराग्राफ यू हैव टू write in the exam, I can say. This is the expectation of the moderator. So इसमें all things cover हो जाते हैं। First thing section cover हो जाता है। Second thing आपको easily understand हो गया तो what examiner is asking to you, so आप वो easily mention कर रहे हैं। और third is conclusion दे रहे हो। So I can say this is the best method to answer the law question. I am able to answer this question very well. Yes, yes, तो yes. इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा, लाइक कि अगर लॉ में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है तो आप बुलेट पॉइंट्स भी आप उसमें लिख सकते हो। और प्लस से एक चीज और भी, आप ये मत सोचो थ्योरी में सिर्फ लॉ ही आता है। मेरे टाइम में कॉस्टिंग में 40-45 मार्क्स का सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन आया था। तो लाइक कॉस्टिंग में भी आपको एक हेवी मार्क्स की थ्योरी पूछी जा सकती है, तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी सोचना है कि अगर कॉस्टिंग के अंदर थ्योरी आता है तो कैसे लिखना है। तो मैं बेटर सजेशन दूंगा उसके लिए भी। जैसे मेरे टाइम में लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का थ्योरेटिकल क्वेश्चन 8 मार्क्स में आया था। अब 8 मार्क्स के लिए आप 2 पेज थ्योरी तो आप नहीं लिख सकते हो, तो आप क्या करो, आप शॉर्ट पैराग्राफ लिखो एंड एट द एंड आपको स्टेटमेंट पता होता है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का क्या स्टेटमेंट बनता है, तो आप स्टेटमेंट ऐड करोगे ना एग्जाम्पल में तो एक अच्छा पिक्चर देता है। सेम फॉर लर्निंग कब का क्वेश्चन आया था, तो पहले हमने थ्योरी लिखा फिर मैंने उसको प्रैक्टिकल वे में बताया एग्जाम्पल के साथ, तो मुझे 69 नंबर फिर भी आए कॉस्टिंग में। तो अगर आप थ्योरी को कॉस्टिंग में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। सेम फॉर कोई और सब्जेक्ट में भी हो सकता है। तो सर ने बताया कि अपना रोहन सर ने बताया अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यू कैन शेयर इन द पेपर फॉर दैट स्पेसिफिक क्वेश्चन। अभिषेक सर ने बताया कि यू कैन गिव अ कंक्लूजन विद द थिंग्स। और एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, मैं इश्यू इज हैपनिंग इन लॉ विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जब चैप्टर 5th लर्न हो रहा है तो फर्स्ट चैप्टर भूल जाता हूँ।
Drishti, can you highlight on this? यस सर, वो तो ऐसा है कि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा। अगर मल्टीपल टाइम्स रिवाइज नहीं किया तो वही है कि मैंने तो कल किया वो भी भूल जाऊंगी अगर रिवाइज नहीं किया। तो वही है कि थोड़ा समराइज करके वो एंड ऑफ द डे आप जितना पूरे दिन में जितना भी पढ़ते हो उसको समराइज करके एंड ऑफ द डे में थोड़ा सा वो रिवाइज कर देना चाहिए कि हाँ आज मैंने इतना किया। तो वो क्या है कि आप सोते हो ना तो वो माइंड में वो आता रहता है, तो फिर वो एक बार अगर दिमाग में घुस गया फिर निकलने वाला नहीं। आई जस्ट वांट टू ऐड वन पॉइंट। जैसे दृष्टि ने बोला कि जैसे क्वेश्चन रेज किया कि हम भूल जाते हैं, फॉर दैट पर्पस रिवीजन के लिए आप एक चीज यूज करते हैं, माइंड रिवीजन रहती है। सो इन दैट सिनारियो क्या होता है, आप जो भी एक पर्टिकुलर जैसे आपने चैप्टर 5 पढ़ा या चैप्टर 1 पढ़ा या रिवीजन कर रहे हो, सो जस्ट उसके जो इम्पोर्टेंट लॉ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते कीवर्ड्स। तो आप जस्ट माइंड रिवीजन करके आप क्लोज योर आइज एंड जस्ट रिवाइज करो कि आपको जितने प्रोसेस है उसकी या ओवरऑल जो स्टेप्स है आपको याद आ रही है कि आपको प्रॉपरली अगर सारे याद आ रहे इन द सेंस आपकी इजीली रिवीजन हो चुकी है। इफ यू आर गेटिंग स्टक इन एट एनी पॉइंट, सब अगेन आप बुक ओपन करो, वहां से रीड करो। सो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए लॉ सब्जेक्ट और थ्योरी सब्जेक्ट के लिए। Yes. फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप प्रोसेस याद कर सकते हो कि एसएफएम सब्जेक्ट है, सो फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है। सो दिस इज माइंड रिवीजन यू कैन यूज। Next question to CMA Om sir. सूरज सर, जस्ट Yes. वांट टू हियर, तो ये हमेशा होता है कि एक टॉपिक पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। Right. So the way I used to follow that, if I learn a topic today, so maybe same week में वो टॉपिक रिवाइज करना, 2 वीक के बाद वापस उसको विजिट करना, विदिन ए मंथ 3 बार उसको विजिट करना। सो वो टॉपिक फिर भूला नहीं जाएगा। एंड देन एटलीस्ट मंथली भी एक बार विजिट करोगे आप वो टॉपिक को, तो वो ये होगा। क्योंकि कोई भी चीज अभी बहुत सारा कम स्टूडेंट होगा जिसको एक बार रीड करेगा तो याद रहेगा, उसको एक Right. पार्टी बोलते हैं मराठी में। सो आपको हमेशा विजिट करना पड़ेगा। तो वो विजिट जब तक आप नहीं करोगे कुछ नहीं होता। सो एटलीस्ट जिस दिन पढ़ोगे उसके एक वीक में वापस उसको थोरोली रिविजिट करो, देन विद इन 15 डेज एंड मंथली। तो एक बार आप मंथली रिविजिट करते जाओगे चैप्टर्स को तो आप कभी भूलोगे नहीं उसको। तो स्टूडेंट्स आपको समझा सर का क्या बोलना है, वीकली या मंथली रिवाइज दैट थिंग सो दैट अपन वो टॉपिक भूलते नहीं है। अगला क्वेश्चन ओम के लिए है। सर I have one question. Setback during How do you handle failure or setbacks? during preparation. I think I am not the right, like, how would I say? ओके, कोई दूसरा बताएगा इसके रिलेटेड? Actually, I have not faced it, so I won't be able to Okay. give the honest answer to that. No So that's problem. why I'm like Nah. kind of, yes. Harish, will you add the I would things, like please? to- Yes, yes. yes sir। तो फेलियर्स और सेटबैक्स की अगर अपन बात करते हैं तो देखो सबसे बड़ा सर फेलियर तो यही होता है कि वो 200 और कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं दिखना। यहाँ रिजल्ट आ रहा है, सभी पास होते जा रहे हैं, अपन नहीं हुए। ठीक है, बहुत धक्का लगता है स्टूडेंट्स को कि हाँ ये होता है ऐसा। अच्छा, उससे भी बड़ा दुख कब होता है सर, जब आप 190 से लेकर मतलब 185 से लेकर और 200 के Yes. बीच में फेल हो जाते हो। हेलो, यू आर बी लाइक यार सारे पेपर अच्छे हैं, देन यू गेट टू सी द 39 एंड बस हो गया फिर आपका नोट कंप्लीट। उससे डील करने के लिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि देखो रोना तो बहुत आएगा, तो रोइए, मतलब अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालिए, जो होता है रोइए। आपको किसी को गालियां देनी, अपने आप को दीजिए, उसका है ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अपने आप को गैदर कीजिए, वापस एक साथ लाइए, क्योंकि ये एक लंबी बैटल है, ऐसे छोटी बैटल तो है नहीं कि अभी लड़े हार गए यार पहुंच नहीं पाएंगे ऊपर, ऐसा थोड़ी है। धीरे धीरे जाएंगे। ठीक है, एक कोयले को भी हीरे बनने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी में जाना पड़ता है, तो फिर ये तो एग्जामिनेशन है, तो लड़ते रहो यार, मतलब हार तो मत मानो। मैंने तो बहुत मतलब मेरा जब फेलियर फेस हुआ था फर्स्ट टाइम, तो मतलब ऐसे बहुत ही रोना वोना आया था। देन आफ्टर दैट आई डिसाइडेड कि नहीं यार, देखो अगर कुछ अच्छा चाहिए तो कुछ बुरा तो देखना पड़ेगा। तो इट इज लाइक दैट कि अभी मेरे को लगता है शायद स्टूडेंट का कुछ इसमें अंदर क्लियरिटी हो गई होगी। बट इसमें मैं और ऐड कर सकता हूँ कि आप लोग है ना, एक अपना खुद का माइंडसेट बना लीजिए कि मैं कभी हार नहीं सकता। आप हारते नहीं, आप फेल नहीं होते,
आपका फेलियर नहीं होता है, वो एक्सपीरियंस बढ़ता है। ठीक है, आप कभी भी फेल नहीं होते हैं। देयर इज कोई भी चीज ऐसी होती नहीं है। आपने खुद के इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जब रिजल्ट आता है तब वहां पे फेलियर नहीं लिखा आता है, वो लिखा आता है नॉट कंप्लीटेड, मतलब आप कंप्लीट करोगे उसको जल्दी। तो वैसे सोचिए उसके बारे में। थोड़ा सा मैं भी ऐड कर देता हूँ, मेरे ज़्यादा अटेम्प्ट लगे हैं। मेरे ग्रुप 1 में 3 अटेम्प्ट लगा था, ग्रुप 2 में भी 2 अटेम्प्ट लगा, फाइनल में भी अटेम्प्ट लगा। तो बेसिकली देखो होता क्या है कि लाइफ में ये कब का पार्ट है लाइफ का, आपको अपने निगेटिव में से अपने लिए पॉजिटिव निकालना है। जैसे मैं करता था, मेरा ग्रुप 1 में फर्स्ट टाइम मैंने दिया था 113 नंबर आया था, सिर्फ अकाउंट में बस पास था 40, बाकी किसी में 30 के अंदर भी नहीं था। सेकेंड टाइम में 133 आया था, मुझे नंबर आज तक याद है अपना। थर्ड टाइम में 208 आया। तो कहीं ना कहीं मैंने अपने लिए निकाला, फर्स्ट टाइम में मैं अकाउंट में पास है, इसका मतलब मैं पास कर सकता हूँ, ये मेरे लिए उसमें पॉजिटिव था। सेकंड टाइम में मैं 2 सब्जेक्ट में गया, मतलब कॉस्टिंग और डीटी, ये 2 सब्जेक्ट में मैं पास था। अकाउंट में इस बार मैं फेल था, तो कहीं ना कहीं मैंने गलतियाँ की थी। बट फिर मैंने अपने माइंड में ये थॉट लाया, यार मैं 3 सब्जेक्ट में पास हो चुका हूँ, तो मतलब नेक्स्ट टाइम अगर एफर्ट करूँ तो चारों सब्जेक्ट में पास हो सकता हूँ। तो वो फिर मैंने नेक्स्ट टाइम में उतना ज़्यादा एफर्ट किया एंड फिर 208 नंबर है। और फिर मैंने ग्रुप 2 में मेरे 247 भी आए, 3 पेपर में एग्जाम्सन भी आया। तो रीजन ये था कि मेरे प्रैक्टिस थोड़ा कम था और कॉन्सेप्ट के ऊपर क्लियरिटी कम थी। तो कहीं ना कहीं अगर आप खुद पे काम करना स्टार्ट करोगे इंस्टेंट ऑफ यार कि मैं फेल कर गया, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं सीएमए जब कर रहा था, मैं बीकॉम भी नहीं कर रहा था, मैंने कुछ भी नहीं किया सिवाय सीएमए के। मेरे पास पीछे जाने का ऑप्शन ही नहीं था लाइफ में। तो अगर आपके पास लाइफ में पीछे जाने का ऑप्शन ही नहीं होगा तो आपको आगे ही जाना है, कुछ और ऑप्शन ही नहीं है। तो दैट्स वे आप वर्क करो, अपने अपने कमियों को देखो और उसके ऊपर अच्छे से काम करो, आपको सोचने को नहीं आएगा कि मैं फेल किया हूँ। दैट्स इट। Okay, अगर कोई thank और you, कर thank सकता है you. आप भी कर सकते हो सकता है सामने वाला 2 दिन में करे, आपको 4 दिन लग जाए। दैट्स इट। Yes, thank you. सर I इसके want Oh, to अंदर मैं now add एक something. छोटी सी चीज एक एक ऐड करना मिनट चाहता हूँ दृष्टि, कि want to जैसे add something? Yes, अच्छा अच्छा। sir. Yes, please. हाँ, एक्चुअली मेरे को भी अटेम्प्ट्स लगे हैं, तो मैंने उससे ऐसा लर्न किया है कि मैं फर्स्ट टाइम जब एग्जाम दिया तो अटेम्प्ट आ गया, फिर सेकंड टाइम जब एग्जाम दिया तो मैं टॉपिक्स जब रीड कर रही थी तब मेरे को ऐसा रियलाइज हो रहा था कि यार ये तो पहले कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसा कुछ आया ही नहीं था। तो मैंने क्या उससे एनालाइज किया कि बहुत सारे टॉपिक्स मैंने स्किप कर दिए थे। तो आपको वो पहले एनालाइज करना है कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं और वो पहले करना है, उसके बाद जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में नहीं पूछते वो करना है। और अटेम्प्ट आना वो एक्चुअली उसमें से बहुत कुछ सीखना होता है। मैंने क्या किया, मेरा जब अटेम्प्ट लगा तो मैंने आरटीआई करके मेरे पेपर्स घर पे मंगवाए थे। पेपर्स मंगवाए तो उससे मैंने एनालाइज किया कि ये लोग मार्क्स कैसे देते हैं, किस अकॉर्डिंग वो लोग मार्क्स देते हैं, वो मैंने देखा और मैंने उस तरह से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। तो वो है कि आप थोड़ा कंसंट्रेट करके टॉपिक्स को ठीक से रिवाइज करो। मेरे जैसा मत करना कि ऐसे नेक्स्ट टाइम पढ़े तो ऐसे लगे कि ओ ये सब तो कब किया था, ऐसे कुछ आया ही नहीं था, ये सब नया आ गया बुक में। Thank you, Drishti. So she told failure is a stepping stone to success. Analyze करो अपन ने क्या गलती की थी. Next time don't make that mistake. Now question to Om. Om, what should we? Shubham ने पूछा है, what should we do to clear our exam in first go? What is most important and what do you did to clear your exam in one go? Yes, Om. आपने फर्स्ट Okay. अटेम्प्ट में किया, ये कैसे किया? I think discipline is the key. आपको टाइम मैनेजमेंट करते आना चाहिए, डिसिप्लिन्ड वे में आपको करते आना चाहिए। तो अगर आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई से ही, आप ओवरऑल एक आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए पढ़ाई का। ऐसा पढ़ाई का तो मतलब मजा तो किसी को आता नहीं है, बट फिर भी कुछ ना कुछ पढ़ाई में ऐसे ढूंढ के पढ़ना चाहिए। और अगर एक बात अगर मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूँ तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। मतलब मेरे साथ वाला अगर 8 घंटे पढ़ता है तो मैं भी 8 घंटे पढ़ना चाहिए, ऐसा मत कीजिए। खुद की स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है ये एनालाइज कीजिए, क्योंकि सबकी कैपेबिलिटीज अलग अलग होती है। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, मुझे प्रायोरिटीज मेरी शॉर्ट थी। मतलब अगर मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है, मूवी जाना पसंद है, आई विल डू ऑल द थिंग्स। बट अगर वही एग्जाम के 1 महीना पहले अगर मुझे बोलो तो मैं वो सब नहीं करूंगा। एक जो कि मतलब स्टूडेंट्स अक्सर गलतियां कर देते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अब मैंने बहुत पढ़ लिया है, मेरा पढ़ाई हो गई है, तो चलो मैं लीजर के लिए या फ्री टाइम के लिए कहीं बाहर चला जाता हूँ। और अभी एग्जाम सर पे आ खड़ा है फिर भी ऐसा कर देते हैं। तो अवॉइड दैट थिंग्स। खुद पे भरोसा रखिए, खुद को एनालाइज कीजिए। मतलब कौन कितने पानी में होता है ये खुद को ही पता होता है। तो जो जितना जल्दी आप उससे समझ पाओगे उतना ही जल्दी आप मतलब उभर पाओगे उससे और जल्दी क्लियर कर पाओगे।
Yes, thank you Om. Time management discipline for the first attempt ये इन्होंने guide किया है. Next to Pratham. Pratham, please answer this question. Actually, we keep one Yes, sir. question. Yes, sir. Already Pratham answered that question. So my next question is, how do you prepare for unexpected or tricky question in exam? Yes, मैंने ये पढ़ा ही नहीं था. Unexpected question आया है. ऐसा हुआ तो क्या करें? जैसे अनएक्सपेक्टेड के हुआ है तो सर पहले तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सबको होनी चाहिए कि इसका क्या हो सकता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ना है तो ट्राई करो एक बार कुछ भी लिख के आओ. ऐसे ब्लैंक छोड़ के अगर मार्क्स ही नहीं मिलेंगे 0 हो गए उससे ज्यादा कुछ लिखोगे 1-2 मार्क्स मिल जाएंगे अनएक्सपेक्टेड है तो. और सर ना हो तो स्किप का ऑप्शन आता है. 7 क्वेश्चन होते हैं 5 ही अटेंड करने होते हैं तो स्किप करने के होते हैं. तो इफ देयर इज अ ऑप्शन टू स्किप द क्वेश्चन यू कैन स्किप द क्वेश्चन. इफ है कंपलसरी को अटेंड ही करना है तो एक बार ट्राई करके आओ और थोड़ा दिमाग लगाओ कि क्या आएगा कैसा आएगा आंसर. आई थिंक सर ठीक कोई एग्री नहीं. मैं Next कुछ question ऐड to करना चाहूंगा Drishti. इसमें. हाँ. Yes, please. अगर एक आधा क्वेश्चन हार्ड आता है ट्रिकी आता है तो उस पे मतलब अपना सारा ध्यान उस पे मत डालिए. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए. वो कहते हैं ना पानी का गिलास आधा भी भरा हो और अगर उसको हमने अगर दिन भर पकड़ के रखा तो वो भी भारी लगने लग जाता है. तो वैसे ही अगर कोई हार्ड क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन आए तो फॉर अ मोमेंट उसको स्किप कर दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसा है, अगर वो मुझे आता है नहीं आता है. क्योंकि अगर एग्जाम की शुरुआत में ही आपका मोरल अगर डाउन हो गया तो पेपर आपका अच्छा नहीं जाएगा. तो आपका खुद का मोरल बनाए रखने के लिए, कॉन्फिडेंस आने के लिए जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि मैं कर पाऊंगा या अगर मैंने थोड़ा इसके बारे में सोचा तो एक आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए पहले. Okay, thank you. तो Drishti, question to इसको you. हम अपन हाँ, yes, एक yes, मिनट yes, सर, मैं इसको Hari. ऐसा बोल सकता हूँ कि चाहे तैयारी आधी हो, कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए. ये तो आपने सीख लिया. तैयारी चाहे कितनी भी आधी हो, अगर आपका कॉन्फिडेंस ठीक रहा तो वो आधी तैयारी भी आपको सीए में क्लियर करवा सकती है. ये सोचिए. Yes, yes, yes. Drishti, question to you. How to score good marks in management accounting subject? ये पूछा है हरिया गिरा ने पूछा हुआ है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में मैं अच्छा स्कोर कैसे करूं? उसमें ऐसा है कि दोनों पे इक्वली फोकस करना है. उसमें कोई कोई थियोरी टॉपिक्स के क्वेश्चंस होते हैं वो भी पूछ लेते हैं. तो ऐसा नहीं है कि थियोरी कर लिया सिर्फ या फिर प्रैक्टिकल सिर्फ कर लिया. दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देना है. और जो थियोरी करते हो वो मेक श्योर करना है कि एक बार थियोरी कर लिया तो फिर उसको 15 डेज के बाद रिवाइज करो. जैसे कि सर ने बताया था कि थोड़े थोड़े टाइम पे रिवाइज करते रहोगे तो वो याद रह जाएगा. और थियोरी इतनी सारी होती है कि सब मिक्स हो जाता है. ये पढ़ा हुआ इसमें मिक्स हो जाता है, ये पढ़ा हुआ इसमें मिक्स हो जाता है. तो वो है कि आप अगर मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये टॉपिक के अंदर मेरे को ये लिखना है. और पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है. जैसे कि पूरी लाइन है तो उसमें से 2-3 जो कीवर्ड्स है वो सिर्फ याद रखो तो वो इनफ है. बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन तो सब लोग ठीक से कर पाते हैं. Thank you, Drishti. Next to Abhishek again. Maths, how to revise in maths? ये शकीरा ने पूछा हुआ है how to revise in math subject. मैथ सब्जेक्ट आई गेस फाउंडेशन में है ना सर मैथ्स. ये फाउंडेशन नहीं है. यस. Anyone from foundation? कोई बता पाएगा? कोई anyone of you can. फाउंडेशन के लिए सर मैथ सब्जेक्ट का सिंपल रोल है कि प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट थिंग है. विदाउट प्रैक्टिस आप मैथ्स को कभी नहीं कर सकते कि उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपने एक आधा स्टेप देख लिया, एक क्वेश्चन देख लिए. आप जितने रिवीजन करोगे तो ही आप इजीली कर सकते हो मैथ्स. ये आप एमसीक्यू में वन लाइनर आंसर देते हो कि उसमें ब्रीफ करते हो? नहीं MCQ में टिक मार्क लगाना है बस. सॉरी टिक मार्क करना है. नहीं इंटर और फाइनल में भी. नहीं इंटर फाइनल में नहीं है मैथ्स. फाउंडेशन में एमसीक्यू में आप क्या करते हो? लाइनर कर रहे हो? नहीं, अब न्यू पैटर्न में सिर्फ टिक मार्क करना है. मतलब 30 15 क्वेश्चन है 30 मार्क्स. आंसर शीट में ही सर्कल करने का आया है मेरे हिसाब से. अभी OMR शीट दी है तो you have to just pick a question हाँ, और ये circle करना करना है. है. इंटर फाइनल में मेरे सर का क्वेश्चन है कि इंटर फाइनल में टिक आप वन लाइनर लिखते हो क्या, खाली उसका आंसर लिखते हो? बस ओनली ऑप्शन लिखते हैं वहाँ पे. जैसे कि 2016 सिलेबस में ऑप्शन प्लस जस्टिफिकेशन था. 2022 सिलेबस के अंदर सिर्फ OMR शीट है जिसमें 15 क्वेश्चंस के लिए आपको वो ब्लैंक्स को फिल करने रहेंगे.
OMR और sheet. सर हमने हमारे एग्जाम के टाइम में Yes, जो yes, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहते थे, सो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम एमसीक्यू के नीचे सॉल्व करके फिर वहां पे जो राइट आंसर वो लिखते थे, और जो थ्योरी क्वेश्चन है सो जस्ट ऑप्शन एंड उसका आगे बस इतना ही। प्रैक्टिकल क्वेश्चन विदाउट आप सॉल्व के आंसर नहीं दे सकते, तो उनको भी समझना चाहिए कि आपने सॉल्व किया है, तो हम जस्ट सॉल्व करके वहां पे आंसर लिखते थे उनके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन टैक्सेशन पेपर इज इट कंपल्सरी टू मेंशन सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉजेस, नोटिफिकेशन नंबर? प्लीज कौन ये करेगा? प्रथम, विल यू आंसर दिस क्वेश्चन? यस सर, डीटी में सर कंपलसरी है सेक्शन और सब सेक्शन, पीछे वाले जो सब जैसे पीजीपीपी है, कुछ भी है सर, कैपिटल गेन है, सब में सर सेक्शन के साथ चालू करना है एज पर सेक्शन दिस, और फिर उसके नीचे उसका आंसर लिखना है, तो इट इज कंपलसरी टू राइट अ सेक्शन। एंड सर स्ट्रेटेजी मेरी जैसे फाइनल और इंटर स्टूडेंट की ऐसी है कि डीटी और आईडीटी का पेपर दे रहे हो तो मई का और नवंबर का सीए का पेपर एक बार गो थ्रू पूरा कर लेना है, और हमारा पास्ट ईयर का जो पेपर है जून का 24 का वो भी एक बार देख लेना है, उसमें से गारंटी 1-2 क्वेश्चन गारंटी आएगा एश्योरिटी, और सेक्शन लिखना कंपलसरी है। और जैसे वो सर बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाए, जैसे क्वेश्चन और आंसर आते हैं, उसमें भी सर सेक्शन लिखना है और पूरा कंक्लूजन के साथ आंसर उसका देना है, थियरिटिकल क्वेश्चन आते थे डीटी में तो। यस, आई जस्ट वांट टू ऐड ऑन वन पॉइंट, यस ये सेक्शन लिखना है, इफ यू आर श्योर कि ये करेक्ट सेक्शन है तो ही आप वहां पे लिखो, अगर रॉन्ग कॉन्फिडेंट नोट नहीं तो आप मत लिखना। सो वो एक चीज हमेशा याद ध्यान आता है रखो। तो लिखो। हाँ, इफ यू आर क्योंकि कॉन्फिडेंट कि आपका आंसर सही सेक्शन लिख के सही अगर है, सेक्शन गलत रहा तो कुछ मिलेगा ही नहीं। हाँ, हाँ, अगर हमेशा ये पर चीज याद ये भी तो रखना। रहता है कि अगर आपको सब्जेक्ट मैटर पूरी तरीके से ऐसे एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो प्रीफर ये करो कि आप सेक्शन नंबर मेंशन मत करो, पर आपका जो सब्जेक्ट मैटर है उसको ब्यूटीफुल एकदम ऐसे नीटली लिखो कि अगले हाँ, वाला समझ जाए कि हाँ इसको सेक्शन नंबर नहीं पता पर इसको पता है कि एग्जीक्यूशन कैसे करना है उस सेक्शन का। हाँ, सेक्शन याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी ठीक है, तो उस पर ज्यादा फोकस मत करो, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जैसे हरीश ने किया उस पर फोकस कीजिए आप सब लोग। यस यस, नेक्स्ट क्वेश्चन टू ओम। What are the most common mistakes students make during exams? जो मिस्टेक्स कर रहे हो, हाउ टू रेक्टिफाई दिस थिंग्स, प्लीज। आई थिंक टाइम वेस्ट करना इज द बिगेस्ट मिस्टेक। और पेपर कभी भी अगर आप पेपर दे रहे हो तो गो फॉर 100 मार्क्स। अगर आप 100 मार्क्स का कुछ तो भी लिख के आओ, नहीं आ रहा है फिर भी सोचो खुद को, मतलब 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आइए, मतलब आइए। पेपर ऐसे आप ऐसा मत सोचिए कि मैं 60 मार्क्स का लिख के आऊंगा और मुझे 40 मिलेंगे, लेकिन वही अगर आप 100 मार्क्स का लिख के आए तो 40 मिलने के चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू 60 मार्क्स का लिख के आए। एग्जाम में शांति से दीजिए, कौन आजू बाजू क्या चल रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कई बार डिस्टर्ब हो जाता है, बट उस पर ध्यान ना दिए तो वो अच्छा है। राइट राइट राइट। I want नेक्स्ट to add क्वेश्चन। something. यस यस दृष्टि। हाँ, मेरे को लगता है सबसे बड़ा मिस्टेक है कि ठीक से क्वेश्चन को रीड नहीं करना, क्योंकि वो क्या होता है जल्दी जल्दी थोड़ा स्ट्रेस होता है, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन ठीक से रीड नहीं करते, और क्या होता है कि इवन इफ वी नो द आंसर वी आर नॉट एबल टू करेक्टली आंसर द क्वेश्चन। तो काम होके आराम से 2 बार क्वेश्चन रीड करिए और फिर आंसर करिए। यस यस यस, नेक्स्ट और टू मुझे अभिषेक। एक और कहना है, जस्ट अ मोमेंट सर। यस अभी यस, जैसे एग्जाम के लिए आई थिंक अभी 10 दिन ही बचा है, तो जो भी स्टूडेंट्स अभी अपीयर होने वाले हैं तो एक बार ट्रायल देके देखिए एग्जाम का। अभी ऐसा सोचिए कि कल से ही मेरे एग्जाम चालू होने वाले हैं, तो 3 घंटे के लिए पेपर देके देखिए कल से। अगर बोथ ग्रुप वालों के लिए तो मस्ट है ये, क्योंकि नहीं अभी बोथ ग्रुप टाइम मतलब टाइम बहुत कम रहेगा, 10th को शायद स्टार्ट होने वाले एग्जाम्स। बट ओके यस ओके ओके यस ओके ओके How it's 3 days only. आई जस्ट वांट टू ऐड सिर्फ एक पॉइंट सर, यस। जो प्रैक्टिकल पेपर्स रहते हैं, तो प्रैक्टिकल पेपर्स पे आप 100% से बेटर एक्यूरेसी पे ध्यान दो। एक छोटी मिस्टेक आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर सकती है, सो इन दैट सिनेरियो आप एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। और जो थ्योरी सब्जेक्ट है, लॉ है या अदर कोई सब्जेक्ट, तो उन पे आप 100% अटेम्प्ट कीजिए। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हो पहले वो अटेम्प्ट करो, जो नहीं आता फिर वहाँ कुछ भी लिख के आओ, इन द सेंस थोड़ा रिलेटेड टू सब्जेक्ट, वैसे 100% अटेम्प्ट कीजिए। ओके सर आई वांट टू ऐड टेक्निकल सब्जेक्ट के सर लिए आई if एक possible चीज और थी कि स्टूडेंट्स है ना फॉर्मेटिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं।
मतलब इट विल बी Yes, लाइक टेबल presentation. बनाया, लिख दिया, एक लाइन खींच दिया, एंड इट विल बी Presentation. ओके. नो नो नो, दैट विल नॉट बी ओके. मैंने अपने आरटीआई कॉपीज मंगवाए हैं और मैंने कंपैरिजन किया दूसरे लोगों से, तब मुझे पता चला है कि मेरा और उसका आंसर सेम है, और वहां पे 2 मार्क्स उसको कम मिले हैं, मेरे को ज्यादा मिले हैं. फॉर व्हाट? फॉर फॉर्मेटिंग ओनली. कि भाई एक पेंसिल और स्केल से लाइन ही तो खींचनी है, तो खींच के आ सकते हो यार, थोड़ा उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा. इट विल बी हार्डली ए 60 सेकंड जॉब. आपका वो Right. पेपर कलेक्ट कर रहा है, स्केल उठाया, पेंसिल से मारो सब कुछ. वो एक बढ़िया रहता है कि अगर आप उस पर ध्यान दोगे ना, तो वो इजीली मार्क्स ऑब्टेन करने में हेल्प करेगा. Presentation skills. Presentation is Yes, important yes. for time management. We'll take one more question. Then क्योंकि Mihir sir आपके wants पेपर to. से ही मॉडरेटर के, क्योंकि आप जैसा Okay. लिखते हो, जैसा प्रेजेंट करते हो, उसके हिसाब से ही मॉडरेटर के मन में आपकी एक इमेज बन जाती है. अगर मॉडरेटर के मन में आपकी इसलिए अच्छी इमेज बन गई तो पता नहीं आपको जहां मतलब 2 मार्क्स मिलने चाहिए वो आपको 3 या 2.5 दे दे तो आपका फायदा है, या जहां काटना चाहिए वहां वो ना काटे मार्क्स. So it's better to present इसलिए जो in a good way. We इसलिए will जो take क्वेश्चन one more अच्छे से आते हैं पहले question वही प्रेजेंट करो. now. We'll take one more question. उसके बाद Mihir sir wants to guide on SSC. So how to prepare for both groups is the question asked by many of them. Sakshi Kulkarni has asked the question. Anybody of you for both the groups किसने दिए आप में से at a time? Who will go ahead with this? Yes, I guess Harish. Om or Om. Om. For final it is Om, for inter it Actually, is me. So it will be helpful. actually ऐसा है कि अभी मतलब Okay, Harish, you can also. एक्चुअली ऐसा है कि एग्जाम अभी 4 दिन पे ही है, तो अभी मतलब बता के इतना हेल्पफुल नहीं होगा, ऐसा मुझे तो भी लगता है. बाकी और अगर Okay. अभी 4 दिन के बारे में अगर बताना है तो सभी स्टूडेंट्स को मैं यही करूंगा, जो पहले पढ़ा हुआ है उसी चीज को पॉलिश कीजिए, कुछ नया मत पढ़ने जाइए. क्योंकि अगर आप नया पढ़ने जाएंगे तो और आपको समझा नहीं तो पहले तो शॉक लगेगा कि यार ये तो था, ये पढ़ना है नहीं. और अगर एग्जाम देते वक्त जाते हो तो थोड़ा ब्रॉड माइंड होके जाइए, ऐसा सोच के मत जाइए कि इस टॉपिक से आएगा मतलब आएगा ही, या ये जो हॉट टॉपिक है इसमें से आएगा ही. क्योंकि अगर ऐसा हो गया और वो किसी दूसरे टॉपिक से आ गया तो यू विल पैनिक. तो अगर आप ब्रॉड माइंडेड होके गए तो आपने क्या सोचा है मन में कि हाँ किसी कहीं से भी सवाल आ सकता है, और सवाल आ गया कहीं से तो आपने जैसा सोचा वैसे ही हुआ ना, यू विल नॉट पैनिक दैट मच. क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा हुआ है, CFR के पेपर में ऐसे ही एक छोटा सा क्वेश्चन था जो 2 मार्क के लिए भी नहीं आ सकता ऐसा मुझे लगता था, लेकिन वो 7 मार्क्स का आ गया था. मतलब We will नॉर्मली अपन just give Mihir sir, he want to speak on SSC student convention, then we will come back to our question and answer sessions again. If sir permits, then we will go take other questions. Mihir sir, to you now. Before announcing SRCC, Chaitanya bhai, if you want to say something, if you are there. Yeah, I'm there. Yes sir. देखो स्टूडेंट एक चीज बोलना चाहूंगा, लास्ट ईयर हमने जो MCQ पब्लिक किए थे उसमें सबसे बड़ा ब्रेन चाइल्ड चैतन्य सर का ही था, और दिस ईयर आल्सो वी आर प्लानिंग टू पब्लिश MCQ सॉफ्टवेयर. तो चैतन्य भाई आप कुछ हाईलाइट करना चाहो MCQ के बारे में? Yes. So thank you, Mihir, for organizing this program, and I really thank to our young panelists and our experienced Suraj and Santosh Brahmankar. Santosh sir and Suraj sir and team. Yes. Rohan is also here. स्टूडेंट्स मैं इतना बोलना चाहूँगा 10 तारीख को एग्जाम है, तो आपका प्रिपरेशन हो गया है. अभी जो कुछ भी हुआ है वो हुआ है. 4 दिन में जितना हो सके उतना प्रिपरेशन करो. हर एक का प्रिपरेशन का स्टाइल अलग होता है, हर एक का स्ट्रेस बस्टर्स का जो होता है वो वे अलग होता है. मैं मूवी के पहले दिन मैं एग्जाम के पहले दिन मूवी को जाता था, क्योंकि मेरे को टेंशन आता था, मैं मूवी को चला जाता था. सो हर एक का स्टाइल अलग होता है. सो आपका जो स्टाइल है वो आपका स्टाइल फॉलो करो, दूसरे को किसी को कॉपी मत करना. आई एम श्योर कि आप पक्का पास हो जाओगे. आज नहीं तो कल, आषाढ़ी नहीं तो कार्तिकी का एग्जाम आता ही आता है. हर साल में 2 बार एग्जाम होता ही है, बट पास तो होना ही है. तो 4 दिन बचे. और एक बहुत अच्छी चीज है, जब मैं एग्जाम देता था तो 4 दिन में ही एग्जाम होता था. सो अगर 2 ग्रुप को अपीयर करना है तो एक दिन में 2 पेपर लिखना पड़ता था, बट एटलीस्ट आपको वो नहीं है, आपको एक दिन में एक ही पेपर लिखना है. या अगर आप एक ही ग्रुप अपीयर कर रहे हो तो आपको एक दिन का ब्रेक मिल रहा है. सो ब्रेक का पूरा यूटिलाइज करो और एग्जाम दे के आइए. एग्जाम होने के बाद
जनरली एक क्वेरी रहता है, अरे इसका आंसर क्या आया, उसका आंसर क्या आया। कुछ ने एग्जाम होने के बाद किसी से बात नहीं किया तो भी चलेगा, घर पे आओ, शांति से दूसरे पेपर का प्रिपरेशन करो। कोई भी पेपर हार्ड गया तो एग्जाम छोड़ो मत, पूरा पेपर पूरा लिख के आना, पूरे पेपर अटेम्प्ट करना। कभी कभी होता है कि पेपर हार्ड जाता है, वो आपको नहीं, सभी को हार्ड गया होता है, और सबको जब हार्ड जाता है तो इंस्टीट्यूट थोड़ा लिबरल हो सकता है। जैसा कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलता हूँ कि इंटर में सेकंड ग्रुप में मैथ था, मेरे को मैथ्स नहीं आता था, इसलिए तो मैं कॉमर्स में आया था, बट अल्टीमेटली मैथ्स को फेस करना ही पड़ा मुझे। तो इतना हार्ड पेपर था, सब डेरिवेटिव्स और इसमें ही था पेपर। आई वॉज वेरी श्योर कि बस अभी मैथ्स में तो फेल हो ही जाऊंगा मैं, सभी और सब। बट मैं बाद में जब देखा तो सब जन बोले थे अरे मैथ्स का पेपर बहुत हार्ड था। फॉर्चुनेटली वो पेपर में मेरे को 43 आ गया, मैं निकल गया। इट वाज फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। तो किसी को कोई पेपर छोड़ना नहीं है, पूरा पेपर 100% अटेम्प्ट करके आओ, और आई एम श्योर कि आपको उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। सो आई विश ऑल द बेस्ट टू योर एग्जामिनेशन। नाउ जैसा मीर भाई ने बोला कि हमने लास्ट ईयर में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकाला था, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उसके लिए पूरा थोरो स्टडी इम्पोर्टेंट है। आप जब तक पूरा स्टडी नहीं करोगे या थ्योरी समझ नहीं लोगे तब तक एमसीक्यू का आंसर करना इज नॉट पॉसिबल। तो लास्ट टाइम तो हमने लाया था, अभी ये टाइम, अभी वो हर टाइम तो आप बुक लेके नहीं जा सकते हो, किधर भी जाना है, ऐसे आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बुक तो कैरी नहीं कर सकता है। सो वी डिसाइडेड दैट वी विल कम विद द मोबाइल एप्लीकेशन where you will be able to answer the multiple choice questions, and after say whatever 20 odd questions or 50 odd questions, whatever number of questions you selected, after you complete all the questions, you will get the result immediately, how many questions are correct and how many are not there. So we are going to launch this in our students convention at Baroda in January. तो जो बंधुओं का एग्जाम अभी है उनके लिए तो जो पास हो जाएंगे उनके लिए उसका यूजफुल है, बट बाकी लोगों के लिए डेफिनेटली वो यूजफुल है। वी आर गोइंग टू लॉन्च इट इन जनवरी। सो वंस अगेन आई गिव माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू। थैंक यू सर। मीर भाई टू यू। यस सर, यस, थैंक यू सो मच चैतन्य सर। स्टूडेंट वो लास्ट ईयर के एमसीक्यू डब्ल्यूआरसी की वेबसाइट पे है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन गो थ्रू दिस ऐप। Secondly, Poojanka madam, can you share this our video, 2-minute video? Yes, sir. Yes, sir. 1 second. Student, we are organizing student regional conference every year. This year, it will be at Baroda, and 23rd, 24th January. Kindly plan accordingly. Poojanka, you can start. आवाज नहीं आ रहा है। One second, sir. I will check, sir. रिसेंटली पास आउट सीए में आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। मैम वहाँ पे शेयर करते समय ना शेयर साउंड का ऑप्शन आ रहा होगा टीम्स में, स्क्रीन जब आप Okay, शेयर okay. करते हैं। I will हाँ। check, sir. लास्ट ईयर हमने नासिक में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम डाला था, तो दिस ईयर Yes, आल्सो sir. प्लानिंग दैट काइंड ऑफ इवेंट आल्सो। आपके पास कुछ Sir, आइडिया है ये तो बता सकते हो कि ऐसा इवेंट कर सकते हैं। अभिषेक नासिक में था ही लास्ट ईयर। yes, sir. The Western India Regional Council of the Institute of Cost Accountants of India is delighted to announce the Students' Regional Cost Convention 2025 Gyanotsav, the Festival of Knowledge and Infinite Opportunities. This iconic event will be hosted by the Baroda chapter on Thursday, 23rd January and Friday, 24th January 2025. Theme of the convention is Learning for a Better Tomorrow, Spirit of Learning, Ethics, Innovation, Excellence and Infinite Opportunities. Knowledge is the ultimate truth. Vadodara, the cultural capital and industrial hub of Gujarat, is renowned for its vibrant heritage, dynamic spirit, and excellence in arts and education. Over the past 57 years, the Baroda chapter has flourished, fostering a strong community built on knowledge and collaboration. This two-day celebration of knowledge and inspiration will bring together students, professionals, and dignitaries on one grand stage. Event highlights includes powerful motivational sessions, competitions,
PPT presentations, mock parliament, startup, CMA Next Gen Pitch, a platform to ignite creativity and critical thinking among budding CMAs, engaging technical sessions, cultural programs. We are expecting a gathering of 1,000+ students from various chapters across the Western region. The event will be graced by special guests and dignitaries, including Honorable Chief Minister of Gujarat Shri Bhupendra Patel, Dr. Hemang Joshi, Member of Parliament, Vadodara, Honorable Home Minister of Gujarat Shri Harsh Sanghvi, Shri Amit Thaker, Member of the Gujarat Legislative Assembly, Puja Dr. Gyanvatsal Swami, life coach and eminent speaker from the BAPS Swaminarayan Sanstha, Her Highness Maharani Radhikaraje Gaikwad. Don't miss out. Be there. This is your chance to be part of an unforgettable experience. Celebrate, learn, grow. See you at Gyanotsav. Join us and make the most of this incredible opportunity. Thank you so much, Pujanka madam. I request Thank you, sir. everyone, can you do participate? This is a memorable evening and events. And those who were attend in the Nasik, they know the 2 days funs and culture events, PPT competition, quiz competition. This time we have introduced startup CMA Next Generation Pitch. These are last year also we have introduced mock parliaments. So every year we are trying to add some new things for the students. So I request everyone, can you do join? और जो recently pass out CMA है, आप लोग पैनलिस्ट है, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो. We will have very good fun. Or also one Yes, thing, sir. We would love I am to. also planning to invite Miss India, Femina. तो ऑलमोस्ट कंफर्मेशन आ गया है, तो कल्चर इवेंट में मिस इंडिया भी आने वाली है. एक बार फुल कंफर्मेशन आता है तो उनका भी वीडियो में रिलीज करूंगा. तो दिस आर द थिंग्स. इसमें से ज्ञानवत्सल स्वामी जी ने कंफर्मेशन दे दिया है, अमित ठाकर जी ने दे दिया है, सीएम से मिलने हम जाने वाले हैं और उनका अभी तो डेट अवेलेबल है लेकिन कुछ कह नहीं सकते बिकॉज इज इट टू अर्ली टू से समथिंग अबाउट द सीएम्स. हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका भी कंफर्मेशन आ गया है. तो जो भी हमने एस्टीम केस है उसमें 50% केस का कंफर्मेशन आ गया है. अभी आप ही लोगों का वेट है, आप आइए, हम आपके वेलकम करने के लिए रेडी है यहाँ पे. थैंक यू. We'll definitely come, sir. बिल्कुल सर, बिल्कुल जरूर आएंगे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच हरीश, ओम, प्रथम, दृष्टि, अभिषेक. Yes, sir. Thank you, It's sir. quite Thank you, basic sir. ना. Go to you. अभी जो फटाफट जो क्वेश्चन है और ऑडियंस भी बैठी है तो आप यू कैन आस्क if they Yes, are. yes, we will continue with the questions. Next question to Harish. What is the strategy for day before exam? एक दिन पहले एग्जाम के what should be the strategy? सबसे पहले तो अपनी नींद पूरी कर लो, क्योंकि तुम पैनिक में अपनी नींद तो पूरी कर नहीं पाओगे. मतलब सोना जरूरी है. 8 घंटे की नींद आराम से पूरी कीजिए. आपकी मेंटल हेल्थ भी स्टेबल रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी. परफेक्ट है, बहुत ज्यादा जरूरी है. और फिर उसके बाद में वो समरी नोट्स उठाइए. कुछ लंबे नोट्स नहीं उठाने हैं भाई. जो आपने शॉर्ट नोट्स बना के रखे ना, मतलब समरी नोट्स के भी जो शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं वो उठाइए. कुछ ऐसे टॉपिक्स आप जो पहले से आपने प्रायोरिटाइज करके रखे हैं कि भाई ये बड़े बड़े टॉपिक्स है, ये तो आएंगे ही. जैसे कि CFR के अंदर जैसे कि 103 इंडेस 103 वो आपको पता है कि वो आने ही वाला है, तो उसके ऐसे समरी नोट्स बनाइए, बुलेट पॉइंट्स बनाइए कि वो ऐसे 5-10 मिनट में खत्म कर लें आप, कि भाई आपको पता चले कि अरे हाँ ये ऐसे हो जाए. ऐसे चेकबुक जैसे पॉइंट बनाइए ताकि एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप कवर कर सकें. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कीजिए. उनको सॉल्व नहीं करना है, उनको रीड करना है, उनको समझना है. सॉल्विंग करने को बैठोगे, नहीं समझेगा, फिर खुद पे लोगे कि नहीं पूरा गया और फिर डाउन चले जाओगे. वैसा नहीं करना है. उसको समझना है कि वो सॉल्व कैसे हुआ है. सॉल्व करते बैठना नहीं है, क्योंकि सॉल्व करते बैठने का टाइम गया. अभी उतना टाइम नहीं है हमारे पास. So that's all from my side. You can add from your side. Other panelist, Abhishek, Drishti, Pratham, Om. Our central council member Chitoda sir is there with us. We request them to give the आपके comments sir exams के related. Please share with the students. Chitoda sir, are you there?
Chitoda sir is very active Yeah, central yeah, council. I'm there actually. Actually, I'm traveling, but I was really, first of all, let me congratulate the Thank you, chairman sir. of this Before particular. that, I want to say something. Sir, last campus से पहले चितोदा सर WRC आके कंपनी टू कंपनी घूमे थे एंड पेटीएम बैंक को लाने वाले चितोदा सर ही है. So चितोदा is like Virat Kohli of our institute. So thank you so much, sir, for everything. Thank Welcome, you. sir. sir. Thank you. Welcome, Thank sir. you. First of all, I was listening last half an hour because I was really wondering that what sort of program it can be. And let me tell you, there is no word to express my pleasure and my whatever. I should say that this is an extraordinary and brilliant idea of our CMA Mir Vyas and entire council and our former chairman of this WSC, Chaitanya Mahirabai, who is also one. I consider him as a IT man, like IT CMA, because CMA, when you'll be all going through a passage of time, maybe within 5 years, you will find a lot of changes due to digital transformations, and you'll be very having that confidence with you that you have personality like Mir Vyas, like Chaitanya Mahir, who are really doing some wonderful job, and entire council under the chairmanship of Arindam Goswami. And of course, I must say that I consider him always that he is also 90 bhai. I always tell 90 bhai. They're all my brother, I consider. They're all doing excellent job. But today, this session has got an excellent, impact within amongst the participants, because Drashti, Pratham, then Om, then I have learned I heard everybody, Harish, Suraj, everybody was, really, they have given excellent, their feedback, because they have all become successful through the passage of this particular, an extraordinary way of, examinations which is held in the CMA profession. I may say you that whatever examinations you may face, CMA examination is quite different. It's a, the boys who have lost focus, they have lost the goal. But those who are keeping focus, they have won the goal. So first, I must say that you have to remain with your focus. Focus is that I will be appearing for the exam, and when I will reach to the exam hall, you have to you have to tell to yourself that I am going to win this game. I am going to pass these examinations. You cannot think that my preparation is bad, my preparation has not been proper. You don't think, because once you have entered into the field to fight, you have to fight to the last nail. Therefore, my suggestion to you, don't, and I am very much fascinated that my young brothers, CMS brothers, have told that the 100 marks, they have to apply, reply for, you have to answer, she should have all the questions you have answered. It's fact that during my interactions with many examiners, during examining, and that they have told, sometimes we want that the boy should pass, but they have not answered the question. If he could answer one question, maybe he could have passed. But since he has not answered, I could not have any space to give any marks. You please try to understand, this is a professional examination. This is not your academic examinations like your universities or like that. I am telling you, I am a teacher of MCOM students. I'm a teacher of, when I taught these MCOM students, I found these MCOM examinations, they are telling postgraduate. But I'm telling you, friends, today UGC has given you that mandate that you are also a postgraduate. You know why? Because UGC has understood that this is tougher than MCOM examinations. Why? Because our examinations are, I'm very rightly, somebody has told that 2 marks question has been converted into 7 marks. How to leverage this? Because you have prepared for 2 marks, but ultimately the question has been given, weightage has been given for 7 marks. So all these issues beautifully discussed, and I'm sure that the way WSC is organizing this, student convention, I just confirmed chairman of the convention, and that, and especially Mir Vyas को मैं already बोल दिया कि I am going to join with my all young brigade
So this young brigade is our future of the profession. You have to pass and you will pass. I'm telling you, you will pass. Why? Because you are really having the love for the profession. Once you feel that profession requires you, you can, tooth and nail, you can fight. And that fighting spirit, you keep it. Don't lose the battle. Maybe sometimes you may be going forward, but you may be having 2 steps backward. But you remember, you have to always go forward. And I wish you all the success. And this particular, I think you should be very much grateful to WSC, the way they have organized this. And last but not the least, I just tell you one thing, that friends, you remember the examinations. When you are going as an examinee, examiner expects some, some sort of reply, some answers sheets should contain some sort of, not only they will be not judging you through the only lines. They would be also judging through some spellings. I remember one examiner has told me, sir, he knows everything, but he could not properly spell out the terminologies, because this is a special language. CMA has got a special language. Every paper has got special language. This language, you always remember that you have to write in proper spelling. You cannot write, which is very much, as a Latin word is there. I always believe it, especially income tax, certain terminologies are there. Law paper, certain terminologies is there. Even mathematics, I have heard that some of the mathematics examiners have told that the person, when he is deducting any equations or he is writing anything, sometimes he is putting wrong English. I know that this is one of the most important trouble as of today because of huge, usage of your WhatsApp and others. But my question, my request to you, please keep your eyes open whenever you're writing anything. It should be, you try to write English correctly, so that it can be, you can bring real difference amongst others. And here everybody is competitor, everybody is friends, but everybody is competitor to each other. So everybody has to show their excellence in different way. I'm thanking, really I'm thankful to Veer Bhai that he has told me that, Dada, you have to also tell something. I'm definitely, because it's my choice of the day actually. So I wish you all the best and look forward to see you as everybody as CMA and to join this CMA fraternity, my dear family. Thank you. Thank you, sir. Thank you for coming. We have still many questions to be answered, but ये जो questions है, we will take that and we will give you the answers in the message box later. लेकिन अभी we will open the form. If students, you have to ask the questions to any panelist directly. आप आपका mic on करो and you can ask the question to any of the panelists. So now the form is open to all your students. कोई भी अपना mic on करके question पूछ सकते हैं. Yes. Anybody is there? इसको क्वेश्चन पूछना है, अपना माइक ऑन करो, कैमरा ऑन करो, you can ask question directly to the panelist or raise the hand. My question is that. Yes, please give. Yes, आपका नाम क्या है? आपका नाम बताओ और क्वेश्चन पूछो जल्दी से. My name is Tejal and my question is that कि अगर हमें 60 मार्क्स का ही पेपर आ रहा है तो 100 मार्क्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट करें? Yes, प्रथम सर, can you answer this thing? 60 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100 का कैसे अटेम्प्ट करें? 60 मार्क का पेपर है, 100 मार्क का कैसे अटेंड करें? उसमें से 30 मार्क के तो एमसीक्यू है, 30 मार्क के तो आते ही होगा आपके एमसीक्यू. कुछ भी नहीं तो तुक्का तो आप मार ही सकते हो. और जो रिमेनिंग है 70 मार्क्स का जो पेपर है, तो उसके लिए आई थिंक सो तुमको नहीं आता है तो छोड़ के तो मत ही आना. तुम अटेंड कुछ भी कर लेना, क्योंकि उसके रिलेटेड कुछ तो तुमको आता होगा, कुछ तो तुमने पढ़ा होगा, लेक्चर में देखा होगा, टीचर ने कुछ तो इसके रिलेटेड कुछ तो बताया होगा. आई थिंक सो तो तुम कुछ भी अटेंड करके आ जाओ. You will definitely get a marks, I think so, and try to get 50 marks. तो तुम्हारा 200 मार्क्स तो क्लियर हो ही जाए. 200 मार्क्स 50 मार्क्स तो गारंटी लेके आओ. I think so.
नहीं, वो चितोदा सर ने अभी बोला एकदम क्लियर कट कि यू विल राइट समथिंग। वो लोग मार्क देना चाहते हैं, आप कुछ लिखोगे तो मार्क मिलेंगे, तो यू मस्ट राइट समथिंग रिलेटिंग टू क्वेश्चन। तो ऐसा मत करना, छोड़ के आना, कुछ ना लिखना। ओम ने भी बताया था, अभी हरीश ने भी बताया था, इवन दृष्टि और अभिषेक ने भी बोला था ये सेम चीज। राइट। So just want to add here, 60 मार्क का आ रहा है 100 में से, दैट मीन्स कुछ तो भी ऑप्शन में छोड़ा है। तो एक तो ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन में कुछ छोड़ना नहीं है, बट फिर भी आप ऑप्शन में छोड़ना चाहते हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि ऑप्शन वाले टॉपिक्स में भी आप 50% मार्क्स स्कोर कर सको। ऑप्शन में पढ़ना नहीं है ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा एटलीस्ट 50% मार्क वो सब्जेक्ट। अगर ऑप्शन वाला टॉपिक का भी क्वेश्चन आ गया तो एटलीस्ट यू शुड स्कोर 50% मार्क, तभी आप पास हो गए, नहीं तो मुश्किल है। सो 60 में से 40 का ऑप्शन जो था उसमें से 20 मार्क्स तो आपको आना चाहिए, इतना आपका स्टडी होना चाहिए। सो वो हिसाब से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। Sir? Arif, yes, please. Sir, tell me about articleship after intermediate exam, please. Yes, कौन बताना चाहेगा? दृष्टि, will you tell Yes, sir. something on this? जैसे कि इंटर अभी तो कैसा है कि इधर यू कंप्लीट योर वन ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट और फिर आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आर्टिकलशिप का टेन्योर अभी 15 मंथ्स का कर दिया है। तो अगर आपने इंटर से स्टार्ट कर दिया तो जब आपको फाइनली अपीयर होना है तो आपको थोड़ा टाइम मिलेगा, क्योंकि आपकी आर्टिकलशिप खत्म हो जाएगी। तो आई वुड रियली से कि कोई भी डमी आर्टिकलशिप मत चूज करो। आर्टिकलशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो पढ़ते हो ना, थियोरेटिकली पढ़ते हो, वो सब प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट अगर फॉर्म में कर रहे हो तो ऑलमोस्ट आपको सब करना आएगा। जैसे कि आप XBRL फाइलिंग का सोच रहे हो तो वो सब आएगा। तो आप कभी भी स्किप मत करना आर्टिकलशिप, और अगर पॉसिबल है तो फर्म में करना। द रीजन बिहाइंड इज, कंपनी में भी आप कर सकते हो, पर फर्म में क्या है, आप लोगों को सारी इंडस्ट्री का कॉस्टिंग, अगर आपको कॉस्टिंग में इंटरेस्ट है तो, क्योंकि मैंने कॉस्टिंग में किया हुआ है, तो कॉस्टिंग सारी इंडस्ट्री का करने के लिए मिलेगा। अगर आप इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर कंपनी तो वो सिर्फ एक इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक हो जाएगा। तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको कौन सी एरिया में इंटरेस्ट है, और वो डिसाइड करना है कि फिर आपको कितने टाइम के लिए करना है। सर, थैंक यू। Yes, we'll keep one session on this evening talk on this specific topic, articleship या management training where we have to do, और ये अपन special panelists बुलाएंगे. They will be the practicing members, even the industrialists will call them, and we'll take a special topic separately on this. Yes, Dhanlakshmi, you want to, you have raised your hand, please. Yeah, good evening everyone. So मुझे एक्चुअली ये जानना था कि जो पेपर नंबर 20A है इलेक्टिव वाला, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बिजनेस वैल्यूएशन, सो ये ओपन बुक रहेगा, कैसा रहेगा? इसमें आप लोगों ने कैसे ये किया था प्रिपरेशन? थोड़ा सा कुछ प्रिपरेशन किया भी था या फिर क्या किया था इलेक्टिव के लिए? थोड़ा सा आप उस पर टिप्स दोगे? Who would like to speak? Abhishek, आप बता Sure, जाएंगे? sir. Yes, please. Yes, sir. So जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है 20A SPM BV, so दो पार्ट में SPM एंड BV 50-50% वेटेज कैरी करते हैं। बिजनेस वैल्यूएशन ऑल अबाउट की प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और उसमें भी जो मेस्टिक जो टॉपिक्स है वो आपके इधर CFR में या SFM में कवर हो जाते हैं। लाइक वैल्यूएशन का है, देयर आफ्टर मेनी टॉपिक्स आते हैं विच इज कवर्ड। सो आपको स्पेसिफिकली अलग से स्टडी नहीं करनी पड़ती उनके लिए। फर्स्ट पार्ट इज दैट। फिर सेकंड पार्ट आ गया SPM का, जो थेरोटिकल है, और आई कैन से मोर ऑफ थेरोटिकल एंड प्रैक्टिकल बोथ है। जो उसका थर्ड चैप्टर है, जो SCM है, SCM का आई गेस बिजनेस फोरकास्टिंग का कोई तो एक चैप्टर है, वो डिट्टो सेम थर्ड चैप्टर SPM में है। फोर्थ जो चैप्टर है उसका, उसमें आई गेस लेंदी सारे थेरेटिकल जितने भी टॉपिक्स उनके लेंदी सब्जेक्ट्स है, अपना लेंदी है, बट उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं फोर्थ चैप्टर में वो भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही मोस्टली मिलेंगे। आप अगर स्कैनर भी देखोगे तो मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। उसमें भी एक Z स्कोर मॉड्यूल आता है क्वेश्चन, और वन मोर, सो आप उन पे मोरली फोकस कीजिए वहाँ पे। एंड जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है वो थेरोटिकल है। हेलो, हाँ, डिस्कनेक्ट हो रहा Yeah, है। you are audible. Okay. ओके। जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है वहाँ पे आई कैन से वो थेरोटिकल है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा थेरी पे फोकस करना पड़ेगा। पर
अदर आप जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स है 70% ऐसा है, 50% जो बिजनेस वैल्यूएशन है वो तो आपके अदर सब्जेक्ट में से कवर हो जाता है। यू नॉट नीड टू बी स्पेसिफिकली उनके लिए अलग से स्टडी नहीं करनी पड़ती। और एसपीएम भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप अगर मॉड्यूल को रेफर करोगे दैट्स मोर देन सफिशिएंट। Okay. दैट्स फ्रॉम माय साइड। Thank सर आई you. वुड ऐड Yeah, समथिंग। thank you. Yes. Yes, अगर Vishal. आप लोग बोथ ग्रुप के लिए अपियर कर रहे हो तो मतलब मैंने दोनों ग्रुप ही दिया था। अनफॉर्चुनेटली मेरा ग्रुप 3 क्लियर नहीं हुआ था, पर अगर दोनों ग्रुप के लिए फोकस कर रहे हो तो आपको 20A लेना चाहिए एसपीएमबीवी, क्योंकि एक्चुअली वो स्कोरिंग है और उसको क्या है कि साथ साथ में कब खत्म हो जाएगा ना वो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इफ यू आर अपियरिंग फॉर बोथ ग्रुप तो आप एसपीएमबीवी मतलब 20A जो सिलेक्ट इलेक्टिव पेपर में है वो आप ले सकते हो। Okay. Arif Thank sir, you. are you there? Arif sir? Arif sir, are you there? ठीक है, we'll move forward with the next question. Ram wants to ask something. Please, on your mic and ask. सर मुझे पूछना था कि हमें कैसे पता चले कि हम बोथ ग्रुप के लिए तैयार है कि नहीं, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि एक ग्रुप देते नहीं निकलता, फिर से देते नहीं निकलता, तो अभी 2 ग्रुप देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? Yes, 2 group देने वाले. Oh, have you given both the groups? Please guide on this. If you want to challenge yourself, go for it. एम हाई। अगर देखिए इंटरमीडिएट में अगर एक एक ग्रुप करके निकाला है तो आप एक एक ग्रुप करके निकाल सकते हो, बट वही चीज करने में क्या फायदा, या मजा नहीं आएगा ना। तो अगर कुछ किक चाहिए या कुछ नया करना है, कुछ चैलेंजिंग करना है, खुद को प्रूव करना है, तो गो फॉर इट, गो फॉर बोथ ग्रुप्स आई वुड से। तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि बोथ ग्रुप मैं चलता नहीं है। ऐड ऑन करना चाहता हूँ। मैं एक ऑर्डर करना है। बोथ ग्रुप के सर 2 फायदे। एक तो 2 ग्रुप दोगे तो सेट ऑफ हो जाएंगे मार्क्स तुम्हारे ग्रुप 4 के ग्रुप 3 एक दूसरे से, और दूसरा सर रैंक आने का चांसेस बढ़ जाएगा, तो सब कंपनी में शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस भी सर है कैंपस में। इसमें 1 पॉइंट मैं भी ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जब आप बोथ ग्रुप के लिए अपियर होना चाहते हो, तो जो मैं भी बेसिकली बोथ ग्रुप ही देना चाहता था, बट ड्यू टू टाइम शॉर्टेज में हो नहीं पाया। बट मैंने क्या किया था, मैंने फर्स्ट फोकस ग्रुप 3 पे किया था। सो जैसे जैसे टाइम जा रहा तो मुझे समझ में आ गया कि इतने शॉर्ट टाइम में मैं ग्रुप 4 नहीं कर सकता। सो पर मेरे पास ये सिचुएशन थी कि मैं कम से कम ग्रुप 3 अटेम्प्ट करके मैं उतना अटेम्प्ट दे सकता हूँ दिसंबर में। सब कभी भी स्टडी कर रहे हो, अटेम्प्ट देना चाहते हो बोथ ग्रुप, तो ऐसा मत करना कि ग्रुप 3 के 1-2 सब्जेक्ट कर रहे हो और ग्रुप 4 के 1-2 सब्जेक्ट कर रहे हो। फोकस ऑन पर्टिकुलर 1 ग्रुप, वो खत्म हो जाए तो सेकंड कीजिए। सो आप टाइम शॉर्टेज हो तो भी आप कम से कम एक अटेम्प्ट कर पाओगे। Thank you. Mayuresh, you can ask your question. Mayuresh, on your mic. Are you there, Mayuresh? Anybody else want to ask? We will conclude the session in next 2 minutes. Arif sir, are you there? वेट, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। आई विल ट्राई टू कनेक्ट हिम। Any other questions, students? Panelist, आपको कुछ ऐड करना है आपके तरफ से? Please, anybody, you can on your mic, आप ऐड कर 1 मिनट। और एक क्वेश्चन है। Yes, Shiju, please ask your question. ठीक है, panelist, anybody of you? Yes, सर Harish, मैं please. करना चाहता हूँ फॉर द फ्यूचर। बस आप इतना समझ के चलो, अभी अपनी स्टडी पे फोकस करो। आर्टिकलशिप करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, इसके सेशंस हो जाएंगे, उस पे फोकस मत करो। और दूसरी चीज ये, अगर आप आर्टिकलशिप में हैं तो प्लीज इस बात का ध्यान रखो कि जो आप पढ़ रहे हो थ्योरेटिकल और जो प्रैक्टिकल काम कर रहे हो उसका लिंक बैठे। अगर लिंक नहीं बैठा ना तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। एक तो आपकी स्टडी भी कंप्लीट नहीं होगी और आपको आर्टिकलशिप का फायदा भी नहीं होगा। दूसरी चीज मेरे को ये बोलना था कि अगर आप आर्टिकलशिप में हो और अगर आपका टाइम सेव नहीं हो पा रहा कि हमको कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, मेरे को ये लगता है कि जैसे अपन बोलते हैं कि 8 घंटे की ही आर्टिकलशिप होती है, कभी कभार नहीं भी होती है। वी हैव टू वेट अंटिल 2 AM, मतलब रात को 2-2 बजे तक रुकना पड़ता है, 1-1 बजे तक फाइलिंग डेट पे रुकना पड़ता है, वहां सब कुछ होती है। लेकिन उसमें भी आपको क्या है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो देखो ये जो सारी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, इससे डरो मत।
ओके कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। और वो बोथ ग्रुप का जो ओम ने बोला कि अगर आपको चैलेंज करना ही है तो आप बोथ ग्रुप के लिए चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसे भी लग रहा है कि यार कब से मैं एग्जाम दे रहा हूँ, फर्स्ट ग्रुप दिया मेरे को 190 आया, सेकंड ग्रुप दिया मेरे को 180 आया, फिर से फर्स्ट ग्रुप दे रहा हूँ नहीं हो रहा है, तो एक काम करो भाई, पूरी की पूरी तरीके 100% पावर लगा के बोथ ग्रुप को एक साथ दे डालो। आर पार की लड़ाई, या तो डू एंड डाई वाला सिचुएशन कि या तो मैं पास हो जाऊंगा या फिर मैं पास हो जाऊंगा। क्योंकि अगर आप डाई का छोड़ने का रखोगे ना तो छोड़ना नहीं है किसी भी चीज को। आप इतनी मेहनत करके इंटर पास करके फाउंडेशन पास करके सबसे अलग बनकर इतनी दूर आए हो, तो ऐसा समझिए आप स्पेशल नहीं हो। ठीक है, अपने आप को स्पेशल कभी मत समझ, बट ऐसा भी मत समझना कि मैं एक नॉर्मल हूँ, लक से पास हूँ। नहीं भाई, अगर तुम 200 पे पास हुए तो भी तुमने मेहनत की है, अगर तुम 399 पे पास हुए तो भी तुमने मेहनत की है। ठीक है, तो मेहनत तो दोनों में रहती है, तो अपने आप को कभी कम मत आंको, कॉन्फिडेंट रहो, अच्छे रहो, पानी पीते रहो एग्जाम टाइम के बीच में, जब एग्जाम का पेपर लिख रहे हो तब, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो काम डाउन करेगा तुमको। तुम्हारी जो पैनिक हो रहे हो, जो तुम बार बार तुम्हारा लिखना नहीं हो पा रहा है, हाथ कांप रहे हैं, उन सब टाइम में पानी पियो, रिलैक्स रहो। ऐसे एग्जाम हॉल में ऐसे घुसते ही ऐसा तुम्हारा ऑरा होना चाहिए कि भाई ये बंदा मतलब ये पास होएगा, ये दूसरों को ऐसा फीलिंग आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कॉन्फिडेंट रहो, मेक योर ओवन ओरा। अगर मैं न्यू जनरेशन के हिसाब से बात करूं तो प्लस 10,000 प्लस 1 लाख जो भी ओरा पॉइंट्स तुमको लेने हैं ले लो उससे, पर कॉन्फिडेंट रहो। Okay, one last question. Yes, आप निशिकांत please. Nishikant, on your mic. I'm having a question regarding the inter registration. तो मुझे ओरल लेना चाहिए, पोस्टल लेना चाहिए? मैंने कोचिंग्स में एक जगह बात की है तो उन्होंने बोला पोस्टल ज्यादा बेटर है, तो उस पर भी कंफ्यूजन है मुझे। Yes, who wants to speak? Abhishek, कौन बता रहे थे अभी? Please continue. बता रही हूँ Please, Om. बोले अभिषेक जी। नहीं सर, आप बोलिए। मैंने बोले सॉरी नहीं सर, मैं भी वो बोल रहा था, इधर चैप्टर ऑफिस या इंस्टीट्यूट मेंबर ही ज्यादा बेटर गाइड कर सकते हैं आपको, बट आई पर्सनली सजेस्ट कि ओरल विल बी मोर बेटर। ओरल लेना चाहिए Yes, sir. एडमिशन। ओरल लेने का एडवांटेज क्या है? If पहले तो आपको chapter- इंस्टीट्यूट से अगर फ्री आपके क्लासेस सीट- मिलती है, आप एंड द सेकेंड बेनिफिट क्या होता है, जब आप इंटर क्वालिफाइड करते हो तो जो भी आपका नियरेस्ट जो चैप्टर होता है जहाँ से आपने एडमिशन लिया है, वो आपको ट्रेनिंग में भी हेल्प करते हैं। अगर आप पोस्टल एडमिशन लेते हो तो आपको ट्रेनिंग में हेल्प चैप्टर से नहीं मिलता है। ओके, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। और 240 आवर्स की क्लासेज मिलती है, 4 मंथ की क्लासेज फ्री मिलती है आपको इंस्टीट्यूट से, तो इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना होता है। हाँ ओम, आप भी बोल सकते हो, आपको कुछ बोलना। Yes, please. नहीं सर। ओरल ही लेना चाहिए, 100% ओरल लेना चाहिए, कोई फीस में डिफरेंस भी नहीं है। और ये WRC या लोकल चैप्टर आपको सब ओनली रीजनल काउंसिल चैप्टर ऑल आर सपोर्टिंग, सो आपको ओरल ही लेना चाहिए। Yes, आपके लोकल चैप्टर आपको इस पे सपोर्ट काफी करेंगे इसमें। Yes, लोकल चैप्टर भी करता है, एक- रीजन भी करता है, सब लोग करते हैं। हाँ रीजनल भी करेगी। यस सर, Yes, इसमें मैं एक Anish, चीज ऐड करना चाहूंगा कि आजकल है ना, जो न्यू जनरेशन है या फिर जो हमारी भी जनरेशन है, वो लोग कोचिंग क्लास पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि फ्री में क्लासेस अवेलेबल हैं, मटेरियल अवेलेबल हैं, उस पर फोकस नहीं करेंगे, वो पैसे देके वहां पे करेंगे। अरे भाई सब कुछ इधर हो रखा है, इसको चांस दीजिए, ये बहुत सही है इधर का। मैंने खुद ने मतलब क्लासेस बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट पे ही की है, मैंने इंटर की क्लासेस इंस्टीट्यूट पे की है और मैंने फाउंडेशन की भी क्लासेस इंस्टीट्यूट पे की है। बहुत सही तरीके से क्लासेस होते हैं, ऑफलाइन क्लासेस तुम्हारे लिए कंडक्ट की गई है तो जाओ उनका फायदा उठाओ। फ्री में तुम वैसे भी कोई चीज छोड़ते नहीं हो, तो फिर इसका तो फायदा उठाओ, ये तो तुम्हारा किक इन करेगा करियर को। Yes, go with the oral classes. सबका सजेशन है। One last ओरल question. में ही जाना है। सूरज सर, सॉरी टू इंटरप्ट, ओरल में ही जाना है। प्राइवेट कोचिंग बोलता है कि पोस्टल में जाओ, क्योंकि फिर वो मेक श्योर करेगा कि उसके पास ही उसको क्लास लगाना है। ओरल में कैसा है कि फीस में तो डिफरेंस नहीं है। दूसरा, ओरल में एक बेनिफिट ऐसा है कि आप चैप्टर में जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे कॉस्ट अकाउंटेंट CEP के लिए आएंगे या बहुत सारे चीज़ों के लिए। अभी आपको 100 आवर्स का कंप्यूटर ट्रेनिंग आने वाला है जो प्रैक्टिकल आने वाला है, उसके लिए आपको चैप्टर में जाना है। 7 डेज IOTP के लिए चैप्टर में जाना है। 50 पास होने के बाद 15 डेज प्री कैंपस के लिए आपको WRC में आना है। अगर आपको सब पता है, अगर आप चैप्टर में कनेक्टेड हो, इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड हो, तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत एडवांस में पता होगी। वेरएज वो इंस्टीट्यूट से डिस्कनेक्ट होगा, खाली प्राइवेट कोचिंग में जा रहे हो, तो
वो प्रॉब्लम होगा. सो आपको प्राइवेट कोचिंग करना है करो, वी डोंट माइंड दैट, बट मेक श्योर कि आप ओरल में ही एडमिशन लो. क्या है कि आपको फ्री में क्लास भी मिल रहा है ना, तो ये समझ लो कि प्राइवेट कोचिंग में आपका एक्चुअल लर्निंग हो रहा है और ओरल कोचिंग में उसका रिवीजन हो रहा है, तो दोनों हो सकता है. और प्राइवेट कोचिंग हमेशा बोलेगा आप ओरल में जाओ मत, बट आई इंसिस्ट कि आप ओरल में ही आओ. और इसमें एक चीज ये ये वैसे हो भी जाता है, है कि सपोज पोस्टल मान लो वाला कि जो आपका होता है ना, एग्जाम वो आपको जो पोस्टल वाला होता है वो ऐसा होता है कि कंसेप्चुअल नॉलेज इन पोस्टल इनसाइट, मतलब इंसाइटफुल जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको ओरल में ही मिलता है कि आखिर इंडस्ट्री में क्या चल रहा है. अपन कनेक्टेड ओरल में रह पाते हैं. आप वहां पे पोस्टल में जब रहोगे ना तो आपको पता भी नहीं रहेगा अरे कितने बच्चे हैं, कौन कैसा है, अपना कंपटीशन कहाँ से किस लेवल पे है. ठीक है, वो पता नहीं चलता, वो बस वहां पे कोचिंग क्लास तक ही लिमिटेड रहता है. ओरल में क्या रहता है कि भाई पूरा का पूरा जहां आपका चैप्टर का एरिया है, या फिर WIRC ही पकड़ लीजिए पूरा, या फिर पूरा रीजनल पकड़ लीजिए, इंडिया पकड़ लीजिए, वहां तक आपको पता चलता है कि कौन से अपने लेवल में है और अपन कहाँ पे है. ये हरीश सर एकदम लीडर की तरह बोल रहे हैं. हाँ. यस, इसको रोहन सर अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल. हाँ, मैं ये बोल रहा था कि लाइक ना, अगर मान लो आपका एग्जाम क्लियर नहीं भी होता है, तो आप ओरल लेने का बेनिफिट ये है कि आप दोबारा ना सिर्फ 1000 रुपीज कोचिंग फीस लगता है रिन्यूअल का, आप पे करके आप फिर से आप 4 महीने बैठ के आप क्लासेस कर सकते हो चैप्टर में. सूरज सर, आरिफ सर लाइन पे, आप उनको कॉल Yes, करो. Arif sir is there online. Arif sir, ex chairman of Nasik chapter. ये भी आपको थोड़ा गाइड करना चाहते हैं रिगार्डिंग टू योर एग्जाम्स. आरिफ सर प्लीज. गुड इवनिंग वन एंड ऑल. सर गाइड तो अभी आई थिंक आवर नेक्स्ट जनरेशन इज वेरी मच रेडी टू गाइड, and Yes, sir. I have been attending this session right from the start, so I think they have very well guided our students. I would just like to share my experience about the student convention which we had last year. We got very much great support from our WRC, especially Chaitanya sir and Mihir bhai, who is the chairman for our student committee and our vice chairman as well. I would really like to ask all of you to please attend the student convention in Baroda. Last time it was in Nasik. We got a privilege to host this event after 14 long years. This time it's in Baroda. The student convention chairman is from Baroda, Mir Bhai himself. So अब कैप्टन के घर में अगर कोई इवेंट है, उनका होम ग्राउंड है, तो जाना तो बनता है. तो जो भी आपका शेड्यूल है, जो भी आपका टाइमिंग है, प्लीज उस हिसाब से एडजस्ट कीजिए एंड मेक श्योर यू अटेंड इट, बिकॉज it is one of the memorable event of my life. As a CMA, I feel proud. Our Nasik chapter members are there. Our Surat sir and Santosh sir. Abhishek is also there. So they know what it feels to host an event and to be a part of it. So I'll ask everyone and request everyone to please attend it. And I'm very much happy for this incredible session, and the way our next gen is coming forward to guide. So at least we are happy. चलो एक portion तो उन्होंने cover up कर लिया है. Yes, sir, So definitely. we can focus on something else. So congratulations WRC, our Nasik chapter members, and all the best to Baroda chapter for this upcoming event. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. I think there are still questions coming, sir. But we will, ये जो questions है, आपको मैसेज और मेल के थ्रू विल गाइड यू श्योरली ऑन दिस थिंग. एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ओरल से कैन इन वन क्वेश्चन विच इज केम दिस, मैं ओरल में मैं चेंज कर सकता हूँ क्या मेरे पोस्टल से ओरल में चेंज कर, पोस्टल में ओरल से Yes, चेंज sir. कर सकते हो कि इज द क्वेश्चन one month they can change Yes, after sir. paying 1000 rupees fees. 500 या 1000 rupees कुछ फीस है, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन कर सकते हैं विद इन 1 Yes. मंथ कर सकते हैं. प्रोविजन देयर 500 rupees, sir. 500 rupees. Okay, thank you. So you can go for oral by paying 500 rupees fees. Sorry, Yes. sir.
You can Yes, convert the postal to oral within 30 days and you have to pay 500 rupees. Yes, within 30 days, 1 month. Yes, thank you, thank you. Thank you all for attending this. Santosh sir will give the vote of thanks. I hand over to Santosh sir, please. Suraj bhai, before end, I really Yes, want yes, to yes, sorry. both of you and all the panelists. It's an incredible event. मैंने सोचा नहीं था कि 150 से 200 लोग आएंगे, but our CCM are also joined, chapters guys have also joined, so big congratulations to everyone, panelists and moderator. वो भी इतने शॉर्ट टाइम में सब आए. That is a great thing. Yes sir, हम कब से प्लान कर रहे थे, but ultimately हो गया. इसका एक ही Thank you sir for having us as a panelist से also. टाइम निकाला वो बहुत बड़ी बात है. ये प्रथम तो मुझे लग रहा है कंपनी में ही बैठा है, वहां से ही प्रथम आई कार्ड पहन के दिखाता मुझे जैसे चालू हुआ वैसे. Please, Santosh sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. All the I best. think we should talk one by one. And Hold on, guys. Thank you all. Hold on. you all can connect to Hello, us. sir. You all can connect to us on social media. बस देखो बात ये है कि सवाल पूछो, नंबर लो, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन अपनी स्टडी पे फोकस करो. मैं अभी भी देख रहा हूँ कि जब मैं अभी सेशन में चालू है, 4-5 बंदों ने मुझे लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेज दी है और 2-3 इंस्टाग्राम रिक्वेस्ट भी आ गई है. मैं ये सोच रहा हूँ कि इनको टाइम कहाँ से मिल रहा है इंस्टाग्राम चलाने का. एग्जाम है 4 दिन में तुम्हारे. Next 15 days no social media. Students, next 15 days सोशल मीडिया पूरा बंद हो जाना चाहिए. हरीश अपना फ्यूचर लीडर है, मैंने बोला था ना. हरीश भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. अरे जरूर जरूर, क्यों नहीं. Thank you, Veer, sir. Thank you. Sir, continue. Thank you, sir. नहीं, आई एम सेइंग आई एम सेइंग कि मैं मतलब जब बड़ौदा आएंगे तब सबसे मिलना होगा बहुत ही सही तरीके से. और पहले मुझे नहीं लगा था कि मतलब मुझे ऐसा लगा था स्टूडेंट रीजनल काउंसिल है तो शायद ही हम लोग इनवाइटेड हैं, पर अब जब सर ने बोल ही दिया है तो चलो चलते हैं. अब किसकी देरी है, अब तो इनविटेशन भी आ रखा है. मतलब पहले तो बिना इनविटेशन के पहुंचने वाले थे, अब तो इनविटेशन के साथ में पहुंच जाएंगे. 2 दिन पहले ही आ जाना. डेफिनेटली सर. अरे वो एक्चुअल में सर आपका ये ना बहुत सही हुआ है कि आपने 2 दिन का रखा है, बिकॉज द मोटो मैच परफेक्ट. 2 दिन तो गुजारो गुजरात में. यस सर, आपको सैटरडे संडे भी मिलेगा घूमने के लिए. यस यस बिल्कुल सर. Thank you. Thank you, Veer, sir, for providing. Thank you, sir. All the best to all the students. Thank you, Suraj. All the best to all the Thank you, students. Santosh sir, for having us as a panelist. And So thanks and everyone. also I would like to wish all the best to all the students who have attended this session. All the best. And wish you the very all the best. All the best, guys. All the best. All the best. और next time आप पैनलिस्ट बनोगे, ऐसे मेरी आशा है सबको. Yes. क्या बात है. Next time आप सब पैनलिस्ट बनोगे. Thank you, sir. Thank you. जब आप पैनलिस्ट बनोगे ना तो अभी मेरे को फीडबैक आया है कि ओम और हरीश के सर ने मेरे को भेजा कि ये दोनों मेरे पास आर्टिकल थे. So he is proud of you. So शैलेंद्र is proud of you. तो आप जब नेक्स्ट टाइम में से कोई भी पैनलिस्ट बनेगा तो आप जिसके पास आर्टिकल भरोगे वो भी बोलेगा अरे ये तो मेरा स्टूडेंट है. चलो we'll conclude this thing. Thank you शैलेंद्र सर, अगर आप भी देख रहे हैं तो thank you sir. Thank you boss. Yes, Santosh sir, please with the शैलेंद्र सर ने मुझे भी मैसेज किया था कल. अच्छा. Thank you everyone for the joining the session. Special thanks for our WRC chairman Arnab sir, our committee chairman Mir sir, and special thanks to Chaitanya sir, Chintrajan sir, and Arif sir for joining the session. And thanks to every panelist for giving answer to our student and their questions. Thanks our backend team to successfully complete our session without any technical problems. Thank you everyone. Thank you, sir. Hello, sir. Yes. Shall I proceed? Yes. On behalf of the Western India Regional Council and the Committee of the Social Students Coordination Committee and Task Force for Young CMS, I extend my heartfelt gratitude to
First of all, CMA Arindam Goswami sir, Chairman WRC in absentia, CMA Mihir Vyas sir, Vice Chairman and Chairman the Task Force for Young CMS and Chairman Students Coordination Committee, CMA Nanti Shah sir, Honorable Secretary WIRC, CMA Chaitanya Mori sir, Treasurer and immediate past Chairman WRC for their guidance and supports for organizing such valuable session for the students. I also immensely grateful to our esteemed panelists, Om, Pratham, Harish sir, Drashti ma'am, Abhishek, and our moderator Suraj sir and Santosh sir for their valuable insights and guidance, which will surely empower our students to excel in their exams. Also, special thanks to CMA Tanmay More sir. He is a Secretary of Students Coordination Committee and whole WRC team for their support. To all the students who presents here, wish you all the best for your examinations. Thank you all. Thanks to you also, Priyanka ma'am. Also, thanks. More Also, we support from acknowledge Priyanka the also. presence Thank you so of much for Priyanka. one second. Also, we acknowledge the presence of CMA Chittaranjan Chattopadhyay sir, our Central Council member ICMA, and CMA Arif Khan sir. Thank you all of you for attending and participating this webinar. Thank you. Thank you, Means Mir sir, sir, ये for session we have to organizing. continue Thank this you, thing. everyone. Saturday evening talks. Yes sir, we will start. Lot Drashti, of please support. बोलो, drashti को कुछ बोलना है कब से? Yes, yes, yes. Thank Please. you, sir, दृष्टि for कब से बोलना organizing चाहती है? this बोलने दो event. दृष्टि को. मौका नहीं मिल रहा उसे. Drishti, yes, Constitution. please. Yes, thank you, Santosh sir, Suraj sir, Mihir sir. Actually, सर ने मतलब मीर अरे संतोष सर और सूरज सर ने इतना फ्रेंडली एटमोसफियर कर दिया था. मैं इतनी नर्वस थी कि कैसे सबके सामने बोल पाऊंगी, पर यू गाइस वर वेरी गुड मॉडरेटर्स. थैंक यू मीर सर फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट, क्योंकि इस टाइप का मतलब बोलता है ना, स्टेज फर्स्ट टाइम मिला है और वो भी सीएम में क्लियर किया उसके बाद, तो ऐसा बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ रिकग्नाइजेशन मिल रहा है. थैंक यू पूजनका मैम, तन्मय सर, जो आप लोग ने कोऑर्डिनेट किया. हाँ थोड़ा बिजी शेड्यूल था तो मीटिंग्स वगैरह थी, तो आपके कॉल को अगर हम लोग रिप्लाई नहीं कर पाए तो सॉरी फॉर दैट. एंड थैंक यू हरीश, ओम, प्रथम एंड अभिषेक. बहुत अमेजिंग सेशन था. थैंक यू एवरीवन. यस सर, हमारा एक मिनी गेट टुगेदर हो गया सब फ्रेंड्स का. Thank you. Thank Sir, you. all the best for the students. And Yes, sir. and I want to say one thing कि जब भी मैम का कॉल आता पूजांका मैम का एंड तन्मय सर का, तो इट विल बी लाइक कि आप तो कॉल नहीं करते, हमें याद नहीं करते. तो मैं बता दूं, हम WIRC का पीछा नहीं छोड़ने वाले अभी. यस मैम. Sure, हम तो sure. ये हम चाहते हैं याद कि करते हैं, आप हरीश बहुत हम बार याद कॉल करते हैं. करें. इसको चेयरमैन में जाकर जल्दी बिठा मुंबई दो. आने वाले हैं मैम. अब जल्दी मुंबई भी आएंगे भी हम वापस. Yes, 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 yes. please do come Always whenever you welcome. feel. Yes. यस आप मैम. सभी बॉम्बे में आइए, WRC आइए, जब भी आपको फील होता है, एनी टाइम एनी टाइम. एंड एवरीवन जो पैनलिस्ट है, आपका ही घर है, दूसरा आपका ही घर एवरीवन है. जो पैनलिस्ट है, मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है, जो पैनलिस्ट है उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, Yes. अपने रीजनल एरिया में अपने चैप्टर से कनेक्ट रहिए, वहां पे जाइए, वहां पे जो सेशंस होते हैं वो अटेंड कीजिए. उसके अलावा अवेयरनेस फैलाइए. सब लोग अबे आई डोंट वांट टू से दिस, बट जैसे वो एक सबका थिंकिंग में रखा ना कि सीए इज बेटर देन सीएमए. नहीं भाई मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कोई किसी से बेटर है, कंपैरिजन नहीं करना है, पर हम बेस्ट क्यों है ये सबको जरूर बताइए. I will ठीक है, keep this अपना session. awareness Evening sir. talk में ये भी लेंगे अपन. Yes, Next sir. session में अपन ये सब कंटिन्यू करेंगे. मीर सर, अगर आपको ज्ञानोत्सव में हम कुछ भी हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज Yes, sir. बताइएगा. Yes, वी आर रेडी yes, टू sir. हेल्प. श्योर, विल कनेक्ट यू डेफिनेटली. Sir, we are ready to help. Any motivational speech, any आप मुझे stand-up ये वर्ड comedy, रेफर करने का कोई anything. आइडिया बताइए जो रिपीट नहीं हो. मैं सुन रहा हूँ. मोटिवेशनल स्पीच के लिए हम हरीश से कांटेक्ट कर सकते हैं. हाँ Yes, हाँ, freely. मोटिवेशनल एंड श्योर सर, कॉमेडी. वो आइडिया हम लोग देख के आपको बताएंगे. मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आइडिया ढूंढ रहा हूँ. आपके पास कुछ हो तो बताना. श्योर सर. Yes, sir. श्योर Yes, सर. yes, yes. Sure, sir. Sure, sir. थैंक यू Okay. श्योर सर. सर. Thanks, Thank thank You you. too soon, sir. We can conclude this. यस यस, ये चलता ही रहेगा 10 Thank मिनट you तक. so much, sir. चलो, thank you Now- very much. And bye All bye. of Thank you, all the thank best. you. Thank you. Thank We you. will Bye bye. officially मिलते हैं guys. conclude मिलते this हैं. sessions. Thanks Yes, all yes, of you. yes. Thank Yes, you. thank you. यस मिलते हैं guys. मिलते हैं. यस यस Thanks. श्योर, जल्दी मिलते हैं वापस. गुड सेशन भाई, गुजरेगा गुड सेशन. Thank you, तन्मय sir. sir.
तन्मय सर आवाजच नाही येत वाटतं. चलो थँक्यू सो मच पूजन